World Standard Day today. So you all are welcome over here. First of all, I will welcome the dignitary on the dais, the all who have spent their time and they have made convenient to come here and join here with us. So thanks for that. And today's theme is basically is based on the that is shared vision for a better world, and that is a spotlighting on the sustainable development goal 9, and that is industry innovations and infrastructure in the age of AI. That is the main highlight of today's theme. Now we will begin this program with welcoming our chief guest and the guest of honor, that is Subhash Gelani. Sir, please welcome. We are very pleased to be with you here. So he is basically chairman Gujarat State Council and council member of I. Okay, so welcome, sir. I request Ambikesh Bhai to welcome him with the bouquet. We also have with us Mr. Vijay Solanki. He is a Deputy Director of Water Forum. Sir, welcome. Ambikesh Bhai, please welcome. Now I request Joshi sir to say few words. Good evening, everyone. Welcome to for the celebration of World Standard Day, Sustainable Goal Development Goal number 9, and we are going to discuss in detail how AI will help in development of industry, innovation, and infrastructure. Now, I will welcome the chairman and the guest of honor today, Subhash Bhai, and I will briefly introduce him. He is B from LD Engineering College in Chemical Engineering in 1982. He has vast industrial experience of 82 to 2004, that is around 8, 6, 15, 50 years you can call. And he is an industrialist. He is running his own business in the industry, chemical industries. And he is also a social worker doing lot of work in Lions Club with this. So I request him to say few words. Thank you. Respected Chairman Local Center Baroda, Sri Satish Bhai Joshi, and my friend Sri Vijay Bhai Solanki, today's guest, chief guest, Padya sir, Hireni madam, and આજના keynote speaker and audience. It is my great pleasure to be here on the auspicious day of the World Standard Day. As all of we know that the standards in this industry or in our life is a very important aspect to be the perfection in our
our day-to-day life, industries and everywhere. There are so many standards are established till now. But today we are discussing regarding the AI, help of the AI in the standardizations of the industries, and there are so many other things in energy, safety, environment, like that. So how AI will be helpful in coming futures for the standardizations of quality, quantity and other aspects like packagings and everything in our industries. So we are going to discuss regarding this aspect. As an IEI, as all of you are well known with our institute, is celebrating this type of days to aware the society in general and industries in large, that after celebrating we are awareing the people for the standardizations of their industries and products and whatever it may be, energy, environment, everything. So we are going to discuss so many things regarding the standardizations. Most of you know what are the standards in India are following. There are so many rules and regulations for each and everything, including safety, environment, energy, packaging, and so many things. Quality is there are for everything there is a standard, and if we get the standard certificates, so then we have to fulfill the conditions. And I request that the standards, if we follow in even small things like traffic and everything, we will get discipline, we will have a more enjoyment with the life. So this is our motto of IEI to celebrate this day here. Thank you very much. Thank you, sir. I think so. Before we start our talk, I think Mr. Solanki want to say something. Sir, please. Good evening. I say good evening. Good evening, sir. Yeah, okay. Dignitaries on the dais, engineer Sandeep, engineer Subhash Gelani sir, who is the guest of honor. Our keynote speaker, engineer Satish Panchal sir. Dr. S.K. Joshi, chairman IEI, Vadodara Local Center. A.N. Padhya sahib, immediate past chairman, Vadodara Local Center. Dr. Hirini Monkodi, honorary secretary. Our chief guest is engineer Sandeep Wasawa, who is the housing commissioner, Gujarat Housing Board, and council member of IEI. Also, the chairman of Water Management Forum. Due to some urgent government official works, he could not remain present in these programs. So on behalf of Engineer Sandeep Wasawa sir, I representing the Water Management Forum as a Deputy Director, Water Management Forum. Engineer Wasawa sir has give a message for the success of these programs and all the best to the organizing committee of these programs. We have a speaker with us at the World Standard Day. I only urge to you and your child and your family members, please adopt each and every standards. India has each and every standards with the rules and regulations. Sometimes we don't follow the rules and regulations, and that's why we are far behind than the other countries, or we are now reaching the 3 trillion, third largest countries of the world. So
without following this standard, definitely we will have some break. So once again, thank you very much to give me opportunity to speak something on the dais. Thank you. Thank you, sir. It's a pleasure. Now we can start with the program, and for that, today's our speaker is Mr. Satish Panchal, who is the founder of the Satsang Enviro Advisor. Sir, welcome. And so today we will listen him and take something from you, right? And for that, I welcome you and I request Joshi sir to welcome him with the flower. So if I introduce Mr. Satish Bansal, he is our family member, I guess, he is a part of our committee. So he is basically done environment engineering from the LE Engineering, Ahmedabad, and having more than 3 decades of rich practical and ethical experience, began his career at one of the top environment consultancy firm at the New Delhi. Worked in the Diversify project with the companies like Tisco, Shell, and the different chemical industry across the India. His experience is very large, and he is covering the major industry for the environment consultancy and all that, which is also include health and the safety regarding regulation and all that. So his journey leads to him to the KNPC in the Kuwait for a few years, and later on he is working as a managing director at one of the Enviro infrastructure company, and he served there over 12 years, and then in 2022 he took the retirement, but after that he has continued with his social responsibility, and he is founder of the Satsang Enviro Advisory at Vadodara. So with this, I welcome you for. Sir. Some technical problems. Please solve in a few seconds.
So good evening to everyone and happy World Standard Day. So जैसे चेयरमैन साहब ने बताया और लोकल चेयरमैन ने भी बताया और मैडम ने बताया, standard is very important and we are lacking in some of the areas. My 3 decade experience clearly shows that we have to work very hard. और सोलंकी साहब ने बताया कि भाई our children and grandchildren, we have to push up there कि भाई standard कैसे follow करना. So I am little bit my 3 decades experience. I just said what is standard basically. So why the theme is basically the theme this year they decided as a shared vision. ये साझा जो जिम्मेदारी हमको लेने का उसकी बात कर रहा है. And SDG 9. What is SDG? कई लोगों को मालूम भी नहीं होगा कि SDG क्या है. सब सीनियर है. मैं एसडीजी में थोड़ा बात करूंगा कि क्या इंपॉर्टेंट है और भारत सरकार इसके ऊपर इतना सारा काम कर रही है, जो अभी की सरकार है और प्रीवियस सरकार ने भी बहुत सारा काम किया है. तो एज ए सिटीजन हम लोग क्या कर सकते हैं, दैट वी हैव टू डिस्कस. सो ये जो थीम जो है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. इंडस्ट्री हमारे पास बहुत है. गुजरात इज फेमस फॉर इंडस्ट्री, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दीस आर ऑल द इंडस्ट्रियल स्टेट. इनोवेशन, हमको इनोवेशन करना है. इनोवेशन कैसे करें? एंड कभी कोई बोलता है कि तू 55 के बाद इनोवेशन नहीं कर सकता. ऐसा नहीं है. रतन टाटा अभी देखा आपने कि भाई 78 में भी इनोवेशन किया और आज मैं पेपर में पढ़ रहा था उसने 40 स्टार्टअप को फंडिंग किया. तो वो दैट इज ए वन टाइप ऑफ इनोवेशन. और एआई, हम लोग अभी बात कर रहे थे कि एआई का भी मतलब डाटा ही है. एआई का यूज क्या होता है मैं आपको बताऊंगा. बहुत सारा एआई का यूज हम लोग आज सिस्टम में कर रहे हैं. So what is sustainable development? So sustainable development का जो basic definition है कि भाई हमको हमारा जो requirement है, the present generation का requirement, हमको पानी, बिजली, जमीन, शुद्ध हवा, ये सब हमको चाहिए. वो तो मिलता रहेगा, हमको मिल भी रहा है. बट हम ऐसा छोड़ के जाए जो आने वाले जनरेशन को मिले. जो हमारे जनरेशन को मिल गया, हमारे चिल्ड्रन, उसके आने वाले चिल्ड्रन को. हम लोग जो 55 के ऊपर वाले बोलते हैं कि भाई अभी कुछ नहीं बचे, हम बहुत निराशावादी बन जाते हैं. बट ऐसा जरूरी नहीं है. बहुत सारा काम हो रहा. ग्राउंड रियलिटी पे हमको थोड़ा देखना पड़ेगा, वो मैं आपको थोड़ा बताऊंगा. सो वी हैव टू मीट द नीड्स फॉर द फ्यूचर जनरेशन. ऐसा हमको काम करना पड़ेगा. सो ये क्या कैसे डिसाइड हुआ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे डिसाइड हुआ? तो ये 2012 में ये जो रायो डी जेनेरियो जो ब्राजील में जो है, वहाँ ये सब देश के बड़े बड़े नेता लोग बैठे और उन्होंने डिसाइड किया कि भाई ये हमको कुछ करना पड़ेगा. बट इससे पहले आप सोचिए 1974 पे उस टाइम के प्रधानमंत्री ने एनवायरमेंट इंडिया में लाए थे. जो आप सोचेंगे इंदिरा गांधी जी ने एनवायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड फर्स्ट उन्होंने बनाया. मगर इंडिया को एनवायरमेंट सिखाने की जरूरत नहीं. वी आर मोस्ट एनवायरमेंट कॉन्शियस पीपल. ठीक है, आज हम लोग कुछ अलग बात कर रहे हैं बट वी आर द मोस्ट एनवायरमेंट कॉन्शियस पीपल इन द वर्ल्ड. अभी प्रूव हुआ है. 2-4 दिन पहले का पेपर निकाल दीजिए. जो हम लोग एनवायरमेंट को मानते हैं वो ये लोग नहीं मानते. बाहर के लोग आज थोप देते हैं कि हम फॉरेन से लाए, कोई जरूरत नहीं, हमारे पास है. तो वो 2002 में उन्होंने कुछ बनाया बेहतर विश्व के लिए साझा दृष्टिकोण. अभी आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं. एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव टू मीट द अर्जेंट एनवायरमेंटल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चैलेंज फेसिंग द वर्ल्ड. आज हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज जो है एनवायरमेंट का है. कोई क्लाइमेट चेंज बोल रहा है, कोई क्लाइमेट कंडीशन डिस्टर्ब हो रहा है. मैं बोलता हूँ क्लाइमेट इमरजेंसी. अभी क्लाइमेट इमरजेंसी वी ऑलरेडी फेस. बड़ौदा वी ऑलरेडी फेस, सूरत ऑलरेडी फेस, कच्छ ऑलरेडी फेस. 200% रेन हो गया. सो दिस इज ऑल द क्लाइमेट चेंज. तो वो उन्होंने 2012 में डिस्कस किया था, 12 साल पहले. वो एसडीजी क्या है? एसडीजी कुछ नहीं है. 2000 की साल में उन्होंने एमजीडी बनाया था. उसका मतलब था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स. उसका एक अप वर्जन उन्होंने ले लिया कि भाई ये हमको करना पड़ेगा. और प्राइमरी एजुकेशन जो है हमको देना है, डिसीज प्रिवेंशन करना है, पॉवर्टी जो है, पॉवर्टी में तो आज इंडिया नाम आता ही, चाहे बोलो कुछ भी बोलो. बट मैं अभी कुछ वीडियो देख रहा था, अमेरिका में भी पॉवर्टी. ऐसा नहीं है कि इंडिया में पॉवर्टी, वहां भी है. वो ठीक है, वो अच्छा चित्र दिखाता है. हमें भी अपना चित्र अच्छा दिखाना चाहिए. इसलिए जो उन्होंने बोला था, जो एक्स प्रेसिडेंट जो था अब्दुल कलाम ने बोला था कि न्यूज़पेपर में हाईलाइट क्यों नेगेटिव आता है.
रखो, पॉजिटिव न्यूज रखो, तो थिंकिंग प्रोसेस चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली ये चेंज होने वाला है। तो ये जो 17 एसडी जो बनाया, तो उसमें जो 9 नंबर पर जो है वो दैट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। और इंफ्रास्ट्रक्चर में आज हमारे देश में बहुत सारा काम, ठीक है, प्रॉब्लम है और सरकार हमसे भी पूछती है। अभी आप शायद किसी को मालूम नहीं होगा कि आईटी एक्ट आ रहा है नया, आपका सुझाव दीजिए। मुझे मालूम है जब जेटली जी फाइनेंस मिनिस्टर बने थे तब उन्होंने बोला था कि बजट के लिए आप कुछ दीजिए, तो मैं पेपर में पढ़ा, मैं बोला एज ए कॉमन मैन मैं क्या सिटीजन दे सकता हूँ। मैंने लिखा, यू जस्ट इमेजिन आई रिसीव ए लेटर फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्टर, वी एक्सेप्टेड योर सम फ्यू सजेशन, वो क्रेडिट कार्ड रिलेटेड सजेशन था, दे एक्सेप्ट। सेकंड सजेशन था जो प्रधानमंत्री जो उन्होंने एनवायरमेंट एक्ट थे, पूरा दुनिया भर का एक्ट है, बोले एक थोड़ा सा कम कर दो, उसको एक एक्ट में लाया जाए। उस टाइम पे जो एनवायरमेंट मिनिस्टर थे वो बेचारे एक्सपायर हो गए, उन्होंने पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया कि जो भी कॉमन सिटीजन है वो अपना व्यू दे सकता है। यू जस्ट इमेजिन आई वॉन्ट ए इन्विटेशन फ्रॉम पार्लियामेंट्री कमिटी कि आप अपना सुझाव दीजिए। ठीक है, वो सक्सेस नहीं हुआ, वो पूरा जो कंसेप्ट था वो सक्सेस नहीं हो सकता है, आने वाले समय में वो कंसेप्ट सक्सेस हो। तो जो पेपर में जो आता है या जो हमारे इवन व्हाट्सएप में भी आता है, हमको सजेशन देना पड़ेगा कि ये गलत है, ये ठीक करो, तो गवर्नमेंट भी तैयार। 2-3 चीज मैं बताऊंगा। तो 9 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट है, 12 नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिसोर्सेज कंजम्पशन। आजकल ये मॉल कल्चर आ गया है, हम जो भी जरूरत नहीं है वो भी घर में ले आते, दैट इज ओवर कंजम्पशन। So that we have to explain very systematically। देखो हायर एंड फायर का टेंशन नहीं चलेगा। आप अपने चिल्ड्रन को बोलेंगे नहीं लाने का, वो दूसरे दिन लेके आए, उसको प्यार से समझाते। So there are ways and means। वो रजनीश ने बोला है कि parenting is also an art, तो वो कैसे हम समझाए वो देखेंगे। So 9 नंबर का क्या मतलब है कि इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब हमको इंडस्ट्री अकेला नहीं करता है, इंक्लूसिव करना, सबको साथ में लेके हमको काम करना। तभी तो आज ये इंटर का वो जो इंटर्न लेना है इतना सारा, जो इंडस्ट्री में जो प्रोसीजर लाया है, इंडस्ट्री भी कुछ काम नहीं करते तो उसको प्रेशराइज करना पड़ता है। तो जरूरी है, तो कभी कभी क्या है कि प्रॉफिट सोचता है तो प्लैनेट के बारे में वो नहीं सोचता है, पीपल के बारे में नहीं सोचता है, तो गवर्नमेंट बैठी तो उसमें वो काम कर रही है। तो इंक्लूसिव हमको देखना है टुगेदर विद इनोवेशन इन इंफ्रास्ट्रक्चर। आप रोड के बारे में तो आप बोलेंगे कि रोड तो अच्छा हो गया, ठीक है, मानसून में खराब हुआ है वो अलग चीज है, बट रोड आप देखेंगे आज से 10 साल पहले मुझे मालूम है जब हम ये जो तारापुर वाला रोड पे जाते थे, आज तारापुर वाला रोड तो कितना जबरदस्त हो गया, यू जस्ट लाइक इन ए फॉरेन कंट्री। तो बहुत सारा काम हुआ है, ऐसा नहीं है, ठीक है, कुछ जगह पे गड़बड़ है, उसको सुधारने का जरूरत है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर काम हो रहा है, ये वंदे भारत ट्रेन हो गया है, 5 घंटे में आप बॉम्बे पहुंच जाते। पहले बॉम्बे पहुंचने में आपको 12 घंटा लगता था, मुझे याद है बड़ौदा एक्सप्रेस पकड़ता था, रात को सुबह बॉम्बे पहुंचता था, अभी आराम से आप 5 घंटे में बॉम्बे पहुंच जाते। सो दिस इज ठीक है, उसमें थोड़ा और भी सुझाव है, और भी काम करना है। What the 9 number play a key role in introducing and promoting a new technology। तो हमको न्यू टेक्नोलॉजी लाना है, कैसे लाना है दैट वी हैव टू डिस्कस। Facilitating international trade and enabling efficient use of resources। Now you just imagine अगर रेड सी में ये जो वॉर चल रहा है इराक में, ईरान में और जो गाजा पट्टी में, अगर वो रेड सी बंद कर दे क्या होगा? We face a lot of problem, so we have to find out the alternate route, and उसके ऊपर बहुत सारा काम चल रहा है। So इंडिया का पीपल को कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, वो भी लोग बैठे हैं वो देखता है, बट एज अ सिटीजन वी हैव टू, जैसे बताया साहब ने कि छोटे छोटे जो रूल्स है उसको फॉलो करना पड़ेगा, वो हम लोग मिस कर रहे हैं। सो हाउएवर द वर्ल्ड स्टिल हैज टू लॉन्ग वे टू गो फुल्ली टैप दिस पोटेंशियल। अभी बहुत लंबा सफर करना है। लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जो अभी अफ्रीका है या जो छोटे छोटे कंट्री है, आप नेपाल समझ लीजिए, आप बांग्लादेश समझ लीजिए, हमारे पड़ोस में है, वो तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, उसको भी कैसे सुधारा जाए। सो नीड टू एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ देयर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अगर आप मान लीजिए कि अगर बांग्लादेश टेक्सटाइल बंद कर देगा तो इंडिया का एकदम दिवालिया आ जाए, बट वो बंद होने वाला नहीं है, कुछ भी हो जाए।
बांग्लादेश में जो चल रहा है आज जो भी वॉर चल रहा है, बट वो टेक्सटाइल बंद नहीं होने। 40% जो टेक्सटाइल जो है वो वहीं पे बनता है, ये कपड़ा भी वही बनता है, हम लाके इधर पहनता है। तो व्हाई वी शुड नॉट स्टार्ट इन इंडिया? ठीक है, अभी एक अच्छा काम हो गया, मोबाइल बनना शुरू हो गया इंडिया में, तो मोबाइल का एक अच्छा काम जो तमिलनाडु में हुआ या जो भी जगह हुआ है। सो लीस्ट डेवलप कंट्रीज को भी डेवलप करना है, साथ में हमारा भी हमको देखना है, एंड ये गोल वी हैव टू फिनिश विद इन 2030। तो ये डेट क्यों मनाया जाता है? वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे, इट इज आल्सो नोन एज ए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डे। 14 अक्टूबर पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है, ऐसा नहीं है खाली इंडिया में। द डे इज मार्क्ड टू सेलिब्रेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपर्ट, जैसे चेयरमैन साहब ने बताया, क्योंकि 82 से साहब इस फील्ड में है, आज 50 साल से जो भी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है उसके लिए भी हमको उनका आभार व्यक्त करने के लिए भी ये डे मनाया जाता है। वॉलेटरी स्टैंडर्ड जो उसमें ISO है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोकेमिकल कमीशन, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन एंड इंटरनेट इंजीनियरिंग का, ये सबका आज हमको आभार व्यक्त करना चाहिए कि आज हम जो हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड बनाए, उस स्टैंडर्ड हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, 100% नहीं कर रहा है, कुछ कर रहा है। So the purpose of the day is to raise awareness about the importance of standardization, the global economy, even the consumer and regulator and industry. We all are consumer. मैं देख रहा था कि ये जो बॉटल है, हम जब बॉटल लेते हैं, जब आप एयरपोर्ट पे जाएंगे तो इतना बॉटल आपको 40 रुपए में मिलेगा, या हम 5-10 रुपए में लेते हैं, बट इसमें ISI मार्क है, ये देखना है। So as a consumer we have to check it कि अगर ISI मार्क है तो वो कंपनी ठीक, बाकी ऐसे डुप्लीकेट आपको मार्केट में बहुत मिल जाएगा। तो ये हमें एज ए कंज्यूमर, इवन रेगुलेटर कैसे वो फॉलो करता है। सो द डेट 14 अक्टूबर वाज चूजन टू मार्क द फर्स्ट गैदरिंग डेलीगेट्स इन 1956 फ्रॉम 25 कंट्रीज। उन्होंने 1956 में सोचा कि भी ऐसा कुछ हमको करना पड़ेगा। सो बाद में वो उससे पहले ISO फॉर्म हो चुका था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन, बट द डे started to celebrate from 1970। और ये साल का जो 2024 का जो थीम है, शेयर्ड विजन, जो विजन हमारे पास है वो शेयर करना। हम 55 के हो गए, ठीक है, मतलब हमारे जनरेशन को, नेक्स्ट जनरेशन को शेयर करना है। एंड 9 नंबर के ध्यान रखना, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन द एज ऑफ AI, वो उनका एक कंसेप्ट रहा है। सो व्हाई स्टैंडर्डाइजेशन इज इंपॉर्टेंट? The router we are using may be made in India, maybe in China, अभी इंडिया में बनना शुरू हो गया है। The smartphone made in China, मोस्टली चाइना में बनता है, ठीक है, अभी इंडिया में शुरू हो गया। The chipset inside both router and smartphone might be imported from Japan or Taiwan, because still we are not developing chip. Okay, 2030 we may be making a chip in Gujarat, but all they work seamlessly with each other despite being made in different part of the world. कैसे काम कर रहा है? तो उसका वजह है because there is a standard frequency. So एक प्रोटोकॉल उन्होंने मेंटेन किया है, वो प्रोटोकॉल के ऊपर वो काम। तो वो देखो, आप स्मार्टफोन हमारा काम हो रहा है, तो बाकी क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, रिवीजन हमको डेवलप करना है, वही वो बता रहा है कि हमको स्टैंडर्डाइजेशन में जाना पड़ेगा। So we live in the world of rapid globalization, जबरदस्त ग्लोबलाइजेशन हो गया है। जो आज इवन मैं आज सुबह पेपर में पढ़ा कि किसी ने भेजा है कि कोरिया का फूड आइटम बड़ौदा में मिलता है। कुछ लोग कोरिया का है बड़ौदा में, कुछ प्लांट में आए होंगे, उनको स्पेशल फूड होगा उनका, तो वो भी बड़ौदा में मिलना शुरू हो गया। तो दैट इज अ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन आ गया, ओपन मार्केट, एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग प्रोडक्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई हम नहीं कर सकता है, क्योंकि सब जगह पे इकोनॉमी को आगे ले जाता है। सो स्टैंडर्डाइजेशन इज इंपॉर्टेंट टूल फैसिलिटेटिंग ट्रेड। आपको मालूम होगा ये जो हमारा हल्दी और जो मसाला है वो भी रिजेक्ट हो गया, वो बताऊंगा अभी आएगा। सो स्टैंडर्डाइजेशन एंश्योर यूनिफॉर्मिटी, वो एक यूनिफॉर्मिटी लाए, यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए। सेकंड, इट इंप्रूव द क्वालिटी एंड सेफ्टी, वो सेफ प्रोडक्ट करेगा। अभी जो परसों जो एक्सीडेंट हुआ महसाणा में, जो 10 लोग बेचारे 9 लोग मर गए, तो दे डोंट फॉलो द प्रोटोकॉल। अगर स्टैंडर्ड फॉलो किया होता तो एक्सीडेंट नहीं होता। तो स्टैंडर्ड फॉलो करना है, देन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड ओवरऑल एफिशिएंसी।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे मालूम है, मेरा कलीग जो पास कलीग बैठा है, हम लोग कभी बात करते थे कि भाई व्हाट इज द यील्ड, जब हम प्लांट में काम करते तो यील्ड क्या होना चाहिए, तो कभी यील्ड 80% आता था, 90, तो मैनेजिंग डायरेक्टर डंडा मारता था, बोले आई नीड यील्ड 98%। तो यील्ड मतलब आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा, वेस्ट कम। तो वो एफिशिएंसी वी आर टॉकिंग 97 की बात, 1997 एट दैट टाइम इट वाज ए एमएनसी। तो आप सोचो ये कंसेप्ट में हम लोग, हमारा जनरेशन निकला है। तो आज का जनरेशन को डेफिनेटली 100% चाहिए, 100% एफिशिएंसी चाहिए। दैट इज रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो हम बोले, जो भी बोलना है। देन गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यस वी हैव टू सर्वाइव इन द मार्केट, नहीं तो हम मार्केट से बाहर हो जाएंगे। आज अगर मार्केट में टिकना है तो वी हैव टू मेक ए स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, बाहर वाला लेगा, एंड अट्रैक्ट कस्टमर्स, नए कस्टमर हमको डेवलप करना है। तो इट हेल्प ओवरकमिंग द टेक्निकल चैलेंजेस वी माइट अचीविंग, वी माइट फेस टू अचीविंग आवर गोल। तो हमारा गोल जो है कि पूरा जो 140 करोड़ लोगों को समृद्ध करना है, तो ये सबको हमको करना है। अर्बनाइजेशन हमने देखा, अब देखिए मैं जो फिगर में निकाला है 11 अक्टूबर का, 8.18 बिलियन पीपल ऑन दिस अर्थ, 818 करोड़ 16 लाख 59 लाख 61,462 पीपल है ये धरती। ये 11 तारीख की बात कर रहा हूं, आज बढ़ गया होगा, आज बढ़ गया होगा। आप ऑनलाइन देख सकता है, ऑनलाइन इवन कई जगह पे तो आप जो फॉरेन जाते तो वो एयरपोर्ट पे लिखा हुआ है कि आज इतना हो गया, इतना बड़ा, उनकी कंट्री का होता है। सो द वर्ल्ड इज गोइंग रैपिड अर्बनाइजेशन। ये आप देखिए, ये चित्र हमारा इंडिया का ही है, बेंगलोर का है। इतना ट्रैफिक, 3 घंटा 4 घंटा एयरपोर्ट से आपको व्हाइट फील्ड जाना है, जो आईटी फील्ड में जाना है, तो आपको 4-5 घंटा तो आराम से लगेगा। एंड इंक्रीज द ग्लोबल पॉपुलेशन। अब देखो पॉपुलेशन कंट्रोल का जो हम बात कर रहे थे अभी अंदर रूम में बैठे कि पॉपुलेशन कंट्रोल चाइना ने ऑलरेडी ट्राई किया कि भाई ये चाइल्ड फेल हो गए, वो नहीं कर सकता। वो इक्वल अपॉर्चुनिटी, गर्ल्स एजुकेशन जितना हम बढ़ाएंगे, इतना चाइल्ड का जो फर्टिलिटी रेट जो है वो ऑप्टिमाइज हो सकता। अदरवाइज ये बहुत मुश्किल है। कोई भी कानून काम नहीं करता। कोई आप बनाओ कि हमको एक ही लड़के में अभी बनाया है कि भी 2 लड़का होगा तो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं चलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, अंदर से जब आएगा कि भाई ओके आई नीड ओनली 1 चाइल्ड, तो ये कुछ इंप्रूव हो सकता है। और उसमें सभी जगह से काम हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। एक्सट्रीम क्लाइमेट you already face, entire world face. Now this is the air pollution, China, Delhi, even some part of Gujarat also. ये जो अभी गिर गया, जो 2023 में जो मंडी में गिरा है, जो मंदिर है, मैं भी गया था 2022 में गया था, और ये हमारा सूरत है। So we are already facing issues of climate change, which require new solution urgent. It is not a climate condition, climate emergency. और उसमें हम कैसे हमारा सहयोग दे सकता है गवर्नमेंट को, that is very important. So to face all these challenges, standardization can play a crucial role in developing new opportunities and solutions to solve the technical challenges. क्योंकि टेक्निकली सॉल्व करना पड़ेगा, बाकी उसको सॉल्व करने के लिए बहुत मुश्किल है। तो व्हाट बेनिफिट? रिड्यूस डेवलपमेंट टाइम एंड कॉस्ट, अगर वी इवॉल्व ऑल द जनरेशन, इंक्रीज इंटरऑपरेबिलिटी, देन रिड्यूस डेवलपमेंट रिस्क, improve product quality, that is again very important, and increase customer satisfaction. कस्टमर आपके पास बार-बार क्यों आएगा? अगर प्रोडक्ट अच्छा होगा तो आपके पास आएगा, अदरवाइज he will or she will not come. So standardization method and protocols can help to save energy, improve air and water quality, which have a far-reaching impact on the environment. ये मेरा ओन एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो मेरा प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन, हम लोगों ने ISO 9001 लिया, 14001 लिया, and really we saved a lot of water consumption. We saved a lot of energy. Even when I was in Gulf also, we worked on all the standards, but they are very strict. See, हमारा जो मराइन जो है, पूरा मराइन के ऊपर है, मराइन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए. So they strictly implemented all the standards and honestly, ऐसा नहीं है कि खाली कागज पे ले लिया, honestly. So Bureau of Indian Standard, that is a nodal agency in India,
recently, even today they conducted a series of programs, one program in Ahmedabad, one program in Surat, even Baroda they arranged a program on 10th October at Hyatt Hotel. I also attended and I learned so many things what BIS is doing. So they also celebrate today as a World Standard Day, which means to pay tribute to collaborative effort of thousands of experts. Even जो 60 के ऊपर है, you can also contribute to the BIS. आप गूगल खोलिए, BIS में जाइए, they need your expertise. वो मुझे पता चला वो BIS मांगता है कि आपके पास जो expertise है हमको दीजिए. We are going to frame it standards. तो वो ओपन है, मे भी करने वाला हो रजिस्ट्रेशन कि मैं कहीं हम कंट्रीब्यूट कर सकते. So the aim बताया मैंने कि भी A is to raise awareness. और ये जो IS 15700 15700 this is for the public service provided by public service organization like Baroda Municipal Corporation को बोल सकता है are you following this standard? कोई particular monsoon में जो हम फेस किया they have to follow this standard. अगर नहीं करता है तो you can force them कि भाई आप ये स्टैंडर्ड फॉलो करो. पूरा उसमें लिखा हुआ है. अगर मैं हाईलाइट उसका बोलूं उसमें अगर वो टाइम लगेगा बट इफ यू आर इंटरेस्टेड आई विल शेयर द प्रेजेंटेशन. बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भाई पब्लिक सेक्टर जो है चाहे म्युनिसिपैलिटी ले लो, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ले लो, चाहे जीएसटी ले लो, हाउ दे परफॉर्म उसका भी एक गाइडलाइन उन्होंने बनाया है. देन नेशनल बिल्डिंग कोड, वो हम सबको मालूम है, जो सिविल इंजीनियर है उनको तो मालूम होगा कि नेशनल बिल्डिंग कोड 2 वॉल्यूम्स है. उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2. उसमें इतना सिंपल लिखा है जो फायर हो रहा है, ये जो राजकोट में फायर हुआ, they never follow the national building code. तो कोड है, जैसे साहब ने बताया कोड है, कोड फॉलो नहीं करते. बट एज ए सिटीजन इट इज अवर ड्यूटी भाई आप फॉलो करना है बताओ. जैसे मैंने बताया कि भी हमको आईएएस लगा, ये आईएएस है, तो वो हमारा जिम्मेदारी बनता है, वो गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है अवेयर कर देता है. अब जब कंज्यूमर ही जब देखेगा नहीं तो ऐसे तो बहुत बैठे हैं कि भाई आपको उल्लू बनाने के लिए, तो हम क्यों उल्लू. तो ये जो है उसमें ये जो बीआईएस ने बनाया है 2016 में बनाया है, आज से 8 साल पहले बनाया है और रिवीजन भी आया है. इसका आप गूगल में देखिए, उसका 15,000 का कॉस्ट है दोनों वॉल्यूम का. हो सकता है कोई इंस्टीट्यूट में होगा बट ऑनलाइन में कुछ पोर्शन अवेलेबल है. यू कैन चेक व्हाट इज द फायर एंड सेफ्टी, अगर सेफ्टी टैंक बनाना है कैसे बनाना है, रोड बनाना है कैसे बनाना है, अगर 5 मंजिले का बिल्डिंग है तो हाउ यू कैन मैनेज. एवरीथिंग हैज बीन क्लियरली मेंशन. मटेरियल कौन सा यूज करना है, ब्रिक्स किस टाइप का यूज करना है, क्योरिंग के लिए क्या टाइम चाहिए, एवरीथिंग हैज बीन मेंशन ऑन सिविल इंजीनियरिंग. इसे किताब और सिविल इंजीनियरिंग कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि उसमें नहीं लिखा. सो दैट वी हैव टू रिफर. हमारा जनरेशन को भी ये बताना पड़ेगा, नेक्स्ट जनरेशन को भी दिस इज ऑल अवेलेबल. सो ये नेशनल बिल्डिंग कोड, एक कॉम्प्रिहेंसिव बिल्डिंग कोड is a national instrument. और कौन इसको कौन इंप्लीमेंट करेगा. so it serves a model code for adoption of all agencies involving in building construction activity, be they public work department like government department, other government construction department जो भी department करता है, as well as local bodies BMC और municipal government and private construction agencies. आज प्राइवेट कंस्ट्रक्शन एजेंसी क्या करता है, वो कुछ फॉलो नहीं करता है, वो गैप नहीं छोड़ता है, बेसमेंट नहीं बनाता है, परमिशन ले आता है. And then ultimately we are facing it. So this is a very important. The code mainly contain administrative provision, development control rules, and general building requirement, fire and life safety requirement, stipulation regarding building material. जब मैंने बताया कौन सा मटेरियल यूज करना चाहिए, structure design. हम बहुत बड़ा स्ट्रक्चर इंजीनियर रख लेते हैं, but that doesn't mean structure design क्या होता है. और प्लम्बिंग जो इंपॉर्टेंट चीज है, प्लम्बिंग सर्विस पे आज आपको प्लम्बर नहीं मिलेगा. प्लम्बर मिलता नहीं है, मेरे घर पे भी प्रॉब्लम प्लम्बर नहीं मिला, मुझे किसी और को बोला था. एंड वो कंसेप्ट जो आया है कि भाई कंसील पाइपलाइन, दैट इज द मोस्ट टिपिकल. इवन ऑल द बंगलोज इन बड़ौदा, ऑल द सोसाइटीज फ्लैट इन दिस मॉनसून दे फेस प्रॉब्लम. कोई ऐसा बोलेगा नहीं प्रॉब्लम फेस किया. इट इज ऑल एक्सपेक्टेड रेन 14 इंच 18 इंच रेन हो क्या होगा. सो प्लम्बिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. और प्लम्बिंग में हम लोग थोड़ा पुअर है. क्या नेशनल प्लम्बिंग एसोसिएशन भी है, लोकल प्लम्बिंग एसोसिएशन है, मगर वो हमारे साथ कैसे काम करता है वो हमको थोड़ा उसको समझाना.
रोड के लिए भी स्टैंडर्ड, अगर आप रोड के लिए बात करेंगे तो रोड के लिए BIS 73 2013 में बना है। ये जो विस्कोसिटी ग्रेड आप बिटुमेन जो यूज करता है वो किस टाइप का बिटुमेन होना चाहिए। अभी आज पेपर में पढ़ा है कि बारिश पड़ रहा है और बिटुमेन लगा रहा है, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। तो सुपरविजन जो है वो चला रहा है, इसीलिए प्रॉब्लम वो मेरा काम नहीं है, बस नहीं कर रहे। सो दीस आर द कोड। पॉलीमर मॉडिफाइड बिटुमेन आजकल जो यूज करता है और फ्रॉम रबर मॉडिफाइड बिटुमेन, सी दीस ऑल स्टैंडर्ड्स आर अवेलेबल। एक बार शांति से जो पढ़ेगा इंजीनियर्स तो मुझे नहीं लगता है कि प्रॉब्लम पड़ेगा। कोई पूछने वाला होना चाहिए कि भाई आर यू अवेयर ऑफ दिस स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड तो बहुत है, मतलब अवेयर भी होना चाहिए। सो BIS has made 23,000 standards in India. You just imagine, आप ले लीजिए आयुष डिपार्टमेंट तो अभी बना, एक 5-7 साल पहले बना, उसमें भी कुछ 110 नए स्टैंडर्ड लगाया है आयुष में भी। उसमें रामदेव का प्रोडक्ट भी आ जाएगा, तो सभी आ जाएगा उसमें। देन सबसे ज्यादा है मेरे ख्याल से ये 2600 है जनरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, उसमें ऑल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का है 2000, सिविल इंजीनियरिंग में है 1961। एनवायरमेंट जो अभी पिछले 10-12 साल से मूवमेंट शुरू हुआ है उसमें भी कुछ 89 जैसा कोड आया। सो दिस ऑल कोड्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल ऑन BIS। कोई भी पढ़ सकता है। तो एज ए जनरल पब्लिक, एज ए जनरल सिटीजन, हमको भी ये नॉलेज होना बहुत जरूरी। वी आर पेइंग द टैक्स, तो हम पूछ सकते हैं कि भैया आर यू फॉलोइंग एनी स्टैंडर्ड। इवन वाटर रिसोर्सेज 467 है। टेक्सटाइल डिपार्टमेंट, मैडम आपका डिपार्टमेंट में 1500 स्टैंडर्ड है। तो हर जगह पे स्टैंडर्ड है, ऐसा नहीं है कोई नहीं बोल सकता। तो दैट ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का ये जो विजन था कि बेहतर विश्व के लिए साझा दृष्टि, कि हमको विश्व को बहुत बेहतर बनाने का सब साथ में लेके चलना। ऐसा नहीं है कि वन मैन कैन डू एवरीथिंग। ये स्टैंडर्ड आपको बताया मैंने, जैसे पैकेज ड्रिंकिंग वाटर ये मैंने बताया, ये ISI लिखा है उसमें, दैट इज वेरी गुड। दूसरा आता है कि पैकेज नेचुरल मिनरल वाटर, वो अलग है, जो एयरपोर्ट में 100-150 की बोतल मिलता है वो अलग है। तीसरा है स्ट्रीट फूड वेंडर। कभी हमने सोचा ही नहीं कि भाई वेंडर का ये जो खाना जो लारी वाला रहता है, समोसा बेचता है, पानी पूरी बेचता है, उसका भी स्टैंडर्ड है। पर ये हाइजीन, जो हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, तो वो भी मैंने दिखाया है उसमें। देखो ये जो IS 14,543 अभी अपडेट किया है 2024 में। एक मिनरल वाटर का 2005 से, ऐसा नहीं है कि आज से आ गया स्टैंडर्ड। मतलब जब हम परचेस करता है वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि ये स्टैंडर्ड वाला बोतल है कि नहीं। ISI का मार्का देखना है उसमें। अब देखिए इसमें सेम मार्का है, ये इसका भी डुप्लीकेट कॉपी बनता है, और हमको ये देखना है कि ISI मार्का है कि नहीं। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। फूड वेंडर का जो है, ये आजकल अच्छा सा टेम्पो लेके आता है, इडली बेचता है, संभार बेचता है, पानी पूरी बेचता है, सब कुछ बेचता है। बट कभी हमने पूछा है कि भाई ये आपके पास कुछ है? एंड पर्टिकुलरली दिस इज बेसिकली रिलेटेड विद द हाइजीन और फूड क्वालिटी, कि भी पानी कहाँ से लाता है, अच्छा पानी लिया कि भाई जो प्लास्टिक पहना है, ग्लोव्स पहना है, उसका बर्तन जो साफ बराबर करता है कि नहीं करता है। सो दिस इज ए कॉमन थिंग। और ये जो स्टैंडर्ड है 16,066 2017 में रिवीजन हुआ, उससे पहले भी स्टैंडर्ड था। तो स्टैंडर्ड ये ऐसा नहीं बोलता कि यू स्टॉप योर बिजनेस, यू डू योर बिजनेस बट इन अ वेरी सिस्टमेटिक वे। तो अगर आप ये रखेंगे तो वो उन्होंने वीडियो बताया था, मैं यहाँ नहीं बता सकता, वो BIS में बताया था कि भाई उन्होंने कुछ जयपुर का दिखाया था कि भाई 2 लारी वाला था, एक सफाई नहीं रखता था, एक सफाई रखता था। उसके यहाँ बहुत सारे कस्टमर जाने लगे एंड ही मेड लॉट ऑफ प्रॉफिट, और वो बेचारा बंद हो। फिर वो बोलने लगा मेरा धंधा नहीं चल रहा है, तो उसने बोला कि भाई तू ये इंप्लीमेंट कर। तो ये एक दूसरे का देख के भी हमको ये इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ काम करना। ये है, मैं देखा कि भाई हम लोग ये जो सेविंग क्रीम लगाता है, हम लोग लेता है भाई गोदरेज का लेता है, अभी पतंजलि भी बनाता है, बहुत सारे लोग बनाते हैं। कभी हमने देखा है कि उसमें आइस मारता है कि नहीं? मैं भी नहीं देखा था, मैं ये BIS में क्या उस वक्त देखा तो उसके ऊपर गोदरेज का था। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लेते हैं। कई ऐसे मार्केट में, जैसे आज पकड़ाया गया अंकलेश्वर में 500 करोड़ का
5,000 करोड़ का जो ड्रग्स का मैन्युफैक्चरिंग, वो ऐसे ही लोग बने बैठे हैं, हमारे सामने ही बैठे हैं। तो ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में आ जाएगा, ले लो भी ले लो, और मॉल में रख दिया, कौन देखने। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई हमारे देश में जो बन रहा है, और जैसे हमको मेड इन इंडिया लोकल जो एनकरेज करना है, तो लोकल वाला ये डेफिनेटली ये इंप्रूव करेगा अगर उसके पास कुछ नॉलेज वाला पर्सन जाएगा। साबुन तो हम बहुत यूज करते हैं, साबुन में हम नहीं देखते हैं, चाहे पियर साबुन ले लो, हमाम ले लो, जो भी साबुन लेना है उसका भी स्टैंडर्ड है 2888, कभी देखा नहीं होगा। तो ये मेरा जो कंसेप्ट था, ठीक है एआई में मैं आता हूँ, बट ये सिंपल चीज इसलिए दिखा रहा हूँ कि एज ए कस्टमर कंज्यूमर अवेयर करने का जो काम है आज, ये जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका भी बहुत सारा है, आप उसमें पढ़ेंगे कि भाई उसके पर लेवल अच्छा होना चाहिए, पैकिंग अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी में क्या क्या, ग्लिसरीन कितना परसेंटेज, फलाना कितना परसेंटेज, ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये भी स्टैंडर्ड्स हमारे पास है। ये मैंने इंटरेस्ट नहीं रखा, ये जो केस हुआ था कि हमारा ये जो पर्टिकुलर स्पाइसेस रिजेक्ट हो गया था यूरोपियन कंट्री में, कि भाई हम नहीं लेंगे, बहुत सारे लोग बेकार हो गए, मतलब वो फैक्ट्री बंद हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि क्या है, तो मैंने पढ़ा उसमें, तो देयर इज अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड बट दे फेल टू फॉलो। उसमें कुछ केमिकल का जो मात्रा है वो कुछ ज्यादा हो गई, तो उन्होंने टेस्ट किया वहां पर, और हमारा लेबोरेटरी में टेस्ट नहीं हुआ था, एंड दे पास, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। तो ये भी बहुत जरूरी है कि भाई हम लोग आज जो खाना खाते हैं वो भी स्टैंडर्ड होना है कि नहीं। फिर हम बोलते हैं कि हमको ये डिसीज हो गया, फलाना हो गया, everything is in front of us, we have to be very open। so ये सब बहुत जरूरी है, और ये सब में हमको देखना पड़ेगा कि भाई ये टर्मरिक पाउडर में तो बहुत सारा डुप्लीकेट होता है मार्केट में, मरी जो है उस पर भी बहुत डुप्लीकेट आता है, तो कैसे उसको करें। तेल आजकल चल रहा है, जो मूंगफली का तेल और जो पाम ऑलिव तेल में मिक्स होता है, वो कंटेनर रिवाइज नहीं होना चाहिए, ठीक है। सब पॉलिटिकल इशू इज डिफरेंट, हमको खाली टेक्निकल, पॉलिटिक्स तो हर जगह आएगा, वो चाहे अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो, चाहे फ्रांस हो, हर जगह आता है, बट हमारा काम है टेक्निकल। एज ए इंजीनियर, एज ए जनरल सिटीजन, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो एआई जब हम इंप्लीमेंट करेंगे, सो इट इंप्रूव द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, इट कैन रिड्यूस द रिपीटेटिव टास्क। कोई बोलता है डाटा है, ठीक है डाटा है, बट डाटा को भी कैसे यूज करना है, सो इट रिड्यूस द रिपीटेटिव टास्क एंड एम्प्लॉय कैन फोकस ऑन हायर वैल्यू, वो थिंक कर सकता है। जो एमएनसी में काम किया, इनको मालूम है कि भाई आपका एफिशिएंसी कैसे मेजर हो। मैं एमएनसी में काम कर चुका हूँ, तो मुझे मालूम है कि भाई आपका दिमाग कैसे फ्री रखे, रूटीन से बंद रखे, तो आप कुछ और सोच सकते हैं, हाउ यू कैन थिंक डिफरेंट। सो इट आल्सो हेल्प द बिजनेस प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा क्विकली एंड एक्यूरेटली, लीडिंग टू मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। तो ये डिसीजन लेना, अभी आप फाइनेंस में आप पढ़ते होंगे कि ये जो मैं तो फाइनेंस का नहीं हूँ, मेरा पढ़ने का आदत है तो पढ़ता हूँ कि ये जो डिपॉजिट एंड जो पैसा देता है बैंक वाला, आपने ये पैसा जमा किया और जो बिजनेसमैन को पैसा, वो रेशियो जो है वो डिस्टर्ब हो चुका है। आरबीआई ने वार्निंग किया, एनबीएफसी नेशनल फाइनेंशियल बैंकिंग को उन्होंने वार्निंग किया है कि भाई आप डिपॉजिट बढ़ाओ, उसके बाद आप पैसा दो, तो रेशियो चेंज हो गया है। तो उन्होंने क्या किया कि भाई लास्ट 5-7 साल का डाटा उन्होंने यूज किया, एंड दे कम सम कंक्लूजन कि भाई कहीं पर गड़बड़ हो रही है। सो अभी आप जब बैंक में लोन लेने जाएंगे थोड़ी बिजनेस में, तो आपको ढेर सारा क्वेश्चन और पूछे जाएंगे। अभी तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि आपका प्रोडक्ट सस्टेनेबल है कि नहीं। जो बैंक में है उनको जब पूछिए कि भाई आप मुझे मान लो मुझे 5 करोड़ का लोन लेना है बिजनेस के लिए, एक्सपांड करने के, तो पहला क्वेश्चन आएगा कि भाई ओके वी विल गिव 5 करोड़ रुपीस, बट हाउ इट हेल्प द एनवायरमेंट। कुछ वेस्ट वाटर कम होगा, कुछ एनवायरमेंट इंप्रूव होगा, बाकी तो प्रॉब्लम तो पता ही है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, बट दीस आर द बेसिक क्वेश्चन नाउ दे आस्क। सो बैंक में भी एनवायरमेंट घुस गया है, सो दैट इज अ गुड साइन फॉर डेवलपमेंट। सो गोल 9 जो है वो पर्टिकुलरली ये जो रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। ऐसा नहीं आज बनाया कल भूल जाए, ऐसा नहीं बनाना है, लंबा चले। जैसे एलिस ब्रिज अहमदाबाद में था एक जमाने, मुझे याद है 100 साल तो चला, अभी भी शायद सुना है कि वो रिवाइव करने वाला है कुछ, क्योंकि मैं तो वहीं का हूँ तो मुझे मालूम है अभी वो रिवाइव करने वाला है। गोल्डन ब्रिज हमारा 100 में बनाया विदाउट एनी वेल्डिंग, उस जमाने में गोल्ड कितना अच्छा था।
तो वो करने वाले तो इंडिया नहीं थे, बनाया तो हम ही नहीं थे ना, कोई बाहर तो आया नहीं था, खाली उसमें एथिक। तो अगर आज हम ठीक है, लोग बोलता है एथिक चला गया, करप्शन बढ़ गया, थोड़ा सा भी हम जो अच्छे सिटीजन है कुछ आवाज उठाए कि भाई नहीं एथिकल प्रैक्टिस करो, तो वो दिन वापस आ सकता है। ऐसा नहीं है नहीं आ सकता। थोड़ी मैं तो हाईली ऑप्टिमिस्टिक जैसे मैसेज नहीं रहना चाहता हूँ कि भाई जो दिन था वो दिन वापस आए, मगर उसके लिए हम सबको, हमारे जनरेशन को भी समझाना पड़ेगा। तो ये एक एग्जांपल है कि भाई चैलेंजेस क्या है, कि भाई लैक ऑफ बेसिक एंड रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो आज हम फेस कर रहे हैं। हमारे पास रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। कुछ इंडस्ट्रियल एस्टेट में आप जाइए तो एकदम इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पुअर मिलेगा। कोई बाहर का आएगा, एक जमाना था मुझे मालूम है 2012 में एक आईएएस ऑफिसर था मेरा बॉस, उन्होंने बोला कि पंचाल आपका एस्टेट में कोई आता है, जर्मनी वाला आता है तो वो मजा नहीं लगता है उसको, आप थोड़ा ठीक कराओ। तो बोले मतलब लिपा पोछी मत करो, बेसिक काम करो। तो हमने वो फायर फाइटिंग सिस्टम लगाया, रोड बनवाया नया। तो बाहर के लोग आए तो बोला ठीक है कुछ तो है, एकदम नहीं है ऐसा नहीं। तो वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमको बनाने का। अगर मान लो चैलेंजेस है तो सॉल्यूशन क्या है, इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। आज बहुत सारा इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, बजट का मैक्सिमम परसेंटेज कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में जाता है, एंड दैट इज अ गुड साइन फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। जब आप सोचिए बुलेट ट्रेन आ जाएगी कितना फायदा, आराम से आप बॉम्बे 3 घंटे में पहुंच जाए, इतना जबरदस्त फायदा। ठीक है, प्रॉब्लम्स तो देखो, कोई नया चीज करने जाए तो प्रॉब्लम तो है, बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विदाउट डिस्टर्बिंग द एनवायरनमेंट। सेकंड बोलता है कि बैरियर है फॉर ड्राइविंग द बिजनेस। कोई बोलता है कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ बट देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस। कोई चैलेंज है तभी तो बिजनेस चलेगा ना। आप चैलेंज होगा आप मजबूत बनेगा। वो छोटे से कंपनी गेम रखता था, मारियो का एक गेम रखता कहते थे यार, मतलब बाद में क्या होता था, बड़ा हो जाता था तो बहादुर बन गया। तो वही बहादुर बनने का तो क्या बोलता है कि इनोवेट टू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। एनर्जी एफिशिएंसी जैसे बताया मैंने कि वाटर एफिशिएंसी, एयर एफिशिएंसी, प्रोडक्ट एफिशिएंसी, यील्ड आपका जो है वो बढ़ा। देन एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन, जितना भी आप डेवलपमेंट करेंगे वो सिक्के का दूसरा साइड डिस्टर्ब तो होगा, बट हाउ टू मिनिमाइज। अभी आपने देखा होगा वायनाड में जो हुआ, वेस्टर्न घाट हमारा पूरा बोलते हैं, बॉम्बे से लेके नीचे तक आप जाओ, पूरा स्टडी हुआ है 2012 में। वो कोई एक्सपर्ट था आईआईटी बॉम्बे वाले ने स्टडी भी किया, मैं पूरा रिपोर्ट भी पढ़ा। उसमें बहुत सारा चीज ऐसा बताया है कि जो नहीं, वहाँ जो गुजरात में पतंग क्या केवल वो वैरायटी वर्ल्ड में कहीं पर भी नहीं। कुछ ऐसे जो एनिमल्स थे वो कहीं पर भी नहीं। तो उन्होंने बोला कि व्हाई यू डिग्रेड ऑल दिस थिंग, दिस इज द गोल्ड फॉर इंडिया। तो अभी उसके ऊपर भी बहुत सारा काम हो रहा है। तो 3 कमिटी, पार्लियामेंट तक कमिटी डिस्कशन हो रहा है और हो सकता है आने वाले 1-2 साल में ये रिपीट ना हो। क्योंकि वायनाड में जो हुआ है वो कुछ और मिस्टेक हो गया, क्योंकि हिल्स पे आपको विदाउट फाउंडेशन आप रेस्टोरेंट बनाएंगे तो वो तो जब बारिश आएगा वो तो नीचे आएगा। तो वो कुछ प्लानिंग करके करो, तो वो अभी उसके ऊपर। सो बिल्ड रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रिडिक्टिंग लाइवलीहुड अगेंस्ट द एनवायरमेंटल एंड नेचुरल डिजास्टर। प्रिडिक्शन करो, एंड प्रिडिक्शन कौन कर सकता है, इंजीनियरिंग कर सकता है। क्योंकि हमको पढ़ाया गया कि हाउ यू कैन सॉल्व द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री। सो 9 नंबर में देयर आर डिफरेंट पैरास आर देयर। सो 9 नंबर का मेन जो है, मॉडर्न इकोनॉमी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट इंजीनियरिंग। सो वी ऑल आर इंजीनियर्स, सो इंजीनियरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनी इंजीनियर, X, Y, Z, A, B, C, P, Q, or any engineering branch. Engineer design, build, maintain infrastructure, road, port, railway, communication, water supply, and energy system are the work of civil, mechanical, and electrical. Industry need engineering sectors such as mining. मैं माइनिंग में काम किया है, मैं 3 साल एक आयरन और माइंस में रहा हूँ, मुझे मालूम है कितना डेंजरस है। वो जो भिलाई से आप आगे जाएंगे 100 किलोमीटर दूर, आयरन और माइंस है, जो दल्ली राजरा बोलता है उसको, ये जगह अपना वहाँ ग्राउंड वाटर रेड आता है। मैं पहली बार गया तो मुझे वो मैनेजर ने बोला कि ये पानी पियो। मैं बोला ये कैसे पियो? बोला हम लोग तो डेली पीते हैं, दैट इज आयरन वाटर, दैट इज गुड फॉर हेल्थ। मैं भी बाद में पिया, मतलब मैं नहीं पिया, मैं तो फिर उसमें
फिटकली डाल दिया, एलम डाल दिया, सेटल हुआ और ऊपर का पानी फिल्टर कर। तो माइनिंग इज ऑल्सो ए आर्ट। माइनिंग में भी बहुत सारा ओपन कास्ट सब कास्ट आजकल तैयार हो रहा है। पेट्रोलियम एंड केमिकल्स, फूड प्रोसेसिंग। नाउ गुजरात इज गोइंग टू बी बिकम ए हब विद इन नेक्स्ट 5 to 7 years फॉर फूड प्रोसेसिंग। दैट इज गुड। कई लोगों को जॉब मिलेगा, अच्छा स्टैंडर्ड फूड मिलेगा, दैट इज वेरी नाइस। All manufacturing intertwined by mechanical, electrical, chemical, and environmental. Environmental engineer also has some role to play in all these things. So engineering innovation in AI, robotic, cloud computing, and big data will drive future economic growth and employment. कोई बोलता है AI आएगा तो employment बंद हो जाएगा, कुछ बंद नहीं होगा। AI आएगा तो और जॉब बढ़ेगा, बट स्मार्ट लोग चाहिए। अभी ऐसे डम लोग हमको नहीं चाहिए, हमको हमारे जो बच्चे हैं उनको स्मार्ट बनाना। और एक डिग्री से काम नहीं चल रहा। आज मान लो ग्रेजुएट हो रहे हैं, वो नहीं चल रहा। आपके पास एटलीस्ट 4-5 डिग्री मिनिमम होना चाहिए। और अभी तो इतना सारा कोर्स फ्री देता है। यूनाइटेड नेशन का मैं भी अभी एक कोर्स कर रहा हूँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का फ्री कोर्स। मैंने 2 कोर्स पूरा किया, HR का है, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है। क्यों नहीं कर सकते? वो ऑनलाइन है, एक पैसा नहीं देना है, 45 मिनट्स आपको कंप्यूटर के सामने बैठना है। यू कैन डू ऑल दिस। एनीवन, एनी लेमैन कैन डू द। इवन भारत सरकार ने वो अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का भी AI मॉड्यूल बनाया है कि आप हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु उसमें भी आप कर सकते हैं। तो ये पर्पस क्या है? अवेयर द पीपल, क्योंकि आने वाला समय जो है उसमें हमको सर्वाइव होने के लिए ये सब जरूरी है। So 9.1 क्या है? Develop sustainable, resilient and inclusive infrastructure. So develop a quality, reliable and sustainable, resilient infrastructure. एकदम मजबूत स्थिति स्थापक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, इंक्लूडिंग रीजनल एंड ट्रांस बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। पहले टीवी में प्रोग्राम आता था इंजीनियरिंग वाला, HB का एक चैनल आता था, अभी तो पता नहीं बंद हो गया। इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वो पेरिस से न्यूयॉर्क तक का कुछ अंडरग्राउंड सी रेलवे लाइन बनाने। मैं उस टाइम अच्छा 15 साल 20 साल पहले देखा था। अभी HBO करता था, अभी पता नहीं आता है कि नहीं आता है, अभी टीवी देखना बंद हो गया है। तो वो HBO चैनल में दिखाया था कि इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कितना जबरदस्त है। और जापान में एक एयरपोर्ट, शायद जापान गया होगा उनको मालूम होगा, तो एक एयरपोर्ट जब प्लेन आता है तो वो अंदर सिंक हो गया, और जब प्लेन जब चला जाता है तो ऊपर आता है। कितना डाटा लिया होगा कि सी में कब टाइड आता है, कब लो टाइड, हाई टाइड कब आता है, कितना जबरदस्त उन्होंने काम किया। सो दिस ऑल डेडिकेशन। सो टू सपोर्ट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ह्यूमन वेलबीइंग विद ए फोकस ऑन अफोर्डेबल एंड इक्विटेबल एक्सेस फॉर, हम सबको ये मिलना चाहिए बेनिफिट, ऐसा नहीं कि कुछ लोगों को ही मिले। 9.2 था प्रमोट, जो भी हम ऐसा कर रहे हैं उसको प्रमोशन करना है। प्रमोट इंक्लूसिव सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन टू मीट द गोल ऑफ 2030। ये SDG बताया मैंने जो 17, वो 2030 में कंप्लीट करना है। और आप नीति आयोग का वेबसाइट पे जाइए, पेपर में भी आता है, वो वडोदरा भी स्वच्छता सर्वेक्षण हमारा आता है। तो दिस इज पार्ट ऑफ ऑल दिस थिंग। 2030 में हमको रिपोर्ट करना है कि वेयर वी आर। एज ऑन टुडे लेटेस्ट लास्ट मंथ का हमारा स्कोर है 61% हमें अचीव कर चुका है। ऑल ओवर इंडिया की बात करें, ठीक है, कुछ पोर्शन में 41 है, कुछ पोर्शन में 71 है। एवरेज बता रहा हूँ 61 हमने अचीव किया है, बट अब फिर गवर्नमेंट हैप्पी नहीं है, बोले एटलीस्ट 80% तो होना चाहिए। सो नेक्स्ट 2 इयर्स उन्होंने टारगेट रखा है, मतलब 24, 25, 26 तक 80 हो गया, then we can definitely achieve 100% by 2030. All the so we have to promote the increase access to financial service. जैसे मैंने बताया वो क्रेडिट FD रेशियो, वो increase the access of all small scale industrial and other enterprise. आज तो मुद्रा है, गवर्नमेंट इतना सपोर्ट करती है। If you have some technical, some expertise, you can start your own business. स्टार्टअप का इसीलिए हमारे यहाँ थोड़ा पुअर है, अभी गुजरात में पुअर है, बाकी और जगह पे जाइए, बैंगलोर ले लीजिए, चेन्नई ले लीजिए, एवरी डे न्यू स्टार्टअप इज कमिंग। एंड हमारे 4 बच्चे लोग जो करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग कर पाते हैं, हमारे जैसे मतलब हमारे बच्चे जो लोग हैं 25-30 साल वाले जो ऊपर वाले बच्चे, वो नया थिंकिंग करते हैं, कुछ लाता है। इन डेवलपिंग कंट्रीज टू इंडिया के लिए फाइनेंशियल सर्विस इंक्लूडिंग अफोर्डेबल क्रेडिट एंड देयर इंटीग्रेशन इनटू वैल्यू चेन एंड मार्केट, तो ये हमको
थोड़ा उसमें इंक्रीज करना है फाइनेंशियल प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट, अपग्रेड और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मैंने बताया कि जितने भी इंडस्ट्रियल एस्टेट है, जितना भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, एनवायरमेंटल साउंड टेक्नोलॉजी लगा के उसको अपग्रेड करना। जब कुछ लोग तो ऐसे रहेंगे, बोलने वाले तो बोलेंगे कि भाई ये बर्बाद कर दिया, ये ठीक नहीं हुआ। समाज में 100% तो आपको फेवर नहीं मिलती, बट एज ए डेमोक्रेटिक नेशन जो गुड है उसको हमको सपोर्ट करना है। इनहैंस रिसर्च एंड अपडेट इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अभी नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट करके एक भारत सरकार का संस्था है, मुझे बुलाया था, चीफ गेस्ट के लिए बुलाया था, 14 मई को मैं गया था, एसडेट 14 तारीख की है, 14 मई को मुझे बुलाया था। तो वहाँ मैं घुमा, पूरा इंस्टीट्यूट अब देखिए इतना जबरदस्त R&D करता है। मुझे एक R&D मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बोला व्हाई यू शुड नॉट इम्प्लीमेंट इन बड़ौदा। तो वो नॉइस पॉल्यूशन वाला, तो मैं बोला हमारे यहाँ जो गणपति विसर्जन है या जो भी है, इतना जबरदस्त डीजे बजाता है कि हमारा विंडो भी वाइब्रेट करने लगता है। उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया है वेस्ट मटेरियल से कि आप डीजे के पास में लगा दीजिए, अभी पेटेंट ले रहा है वो, डीजे के पास लगा दीजिए तो वो आवाज जो है वो बाहर नहीं आए। अगर मान लो 110 है तो बाहर आते आते वो 70-60 एक प्रोडक्ट उन्होंने बनाया। दिस इज इंडियन इंजीनियर, इंडियन साइंटिस्ट, स्टडीड इन बैंगलोर, स्टडीड इन मुंबई, स्टडीड इन अहमदाबाद, दे मेड R&D। अभी पेटेंट चल रहा है उनका, शायद पेटेंट मिल जाएगा। तो वो नॉइस वाला जो कंसेप्ट है वो तो वेरी यूजफुल, क्योंकि हम लोग पर्टिकुलरली, मेरा तो घर का विंडो वाइब्रेट होता है तो जब जाता है वो डीजे, क्योंकि 140-150 हो, हाँ तो हार्ट बीट भी बढ़ जाता है, कई लोग मर भी जाते हैं जो सुना है। तो ये जब रिलीजियस है, हम बंद नहीं कर सकते, धर्म तो मानना है, ठीक है, उनका फंक्शन करने दे, बट ये सही सिस्टम। दूसरा उन्होंने बनाया है, मुझे बोला कि आपका भूखी कास्ट का प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं बड़ौदा। तो मैं बोला आप बड़ौदा आइए, बोले आप बड़ौदा को आके गए, हम लोग इतना वेटेज नहीं मिला। मैं बोला हमारे साथ आइए, हम कुछ बात करेंगे। तो हम इंस्टीट्यूट या IWW है उनके साथ बात करके एक बार बुलाएंगे। पूरा नागपुर का एक ड्रेन है, वो नीरे से जाता है, मतलब हमारा बुकी कास जैसा ही है, और उसमें पूरा सीवेज जाता है। उन्होंने नेचुरल वे में ट्रीट किया है, और पूरा का पूरा सीवेज, पूरा नीरी का गार्डन उन्होंने ग्रीन किया, इतना जबरदस्त ग्रीनरी कर दी। मैं तो एकदम सरप्राइज हो गया। मैं बोला साहब क्या करते हैं? तो बोले साहब मैं बड़ौदा में करना चाहता हूँ। बोले हम बात कर रहे हैं, हो सकता है आने वाले 1-2 साल में ये भी हमारे लिए व्यवस्थ हो जाए। तो वो मैं बताते उन्होंने बोला कि आप क्या आइडिया देते हैं? मैं बोला देखो आप R&D करता है, मतलब मेरा एक और डी लगा दीजिए, रिसर्च डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जब नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं। आपका R&D आपके पास रहेगा, हमारा R&D हमारे पास रहेगा। लेट अस मूव फर्दर। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो R&D एंड डी वो करने वाला है। तो ये लिखा है कि भाई हमको किसी भी तरह से 1 बिलियन R&D पर लाख पीपल हमको होना चाहिए, कभी हमको करना है। देन 9.39A है, कई लोग 9.6 बोलता है, फैसिलिटेट सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर डेवलपिंग कंट्री, मतलब इंडिया के लिए जो इंडियन डेवलप्ड नेशन है। फैसिलिटेट सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपिंग कंट्री थ्रू इनहैंस फाइनेंशियल सपोर्ट जो देगा वो हम दे सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल एंड टेक्निकल सपोर्ट टू अदर कंट्री, अफ्रीकन कंट्री, क्योंकि आज कोबाल्ट जो है, निकल जो है, जिंक जो है, वो कहाँ से आए? अफ्रीका ही बैठा है, और कई लोग अफ्रीका आज बिजनेस करने जा रहा है। तो वो उनको भी हमको सपोर्ट करके कैसे हमको लाना है, वो एक अच्छा चीज। अच्छा है, आपने आर्टिकल पढ़ा होगा कि अफ्रीका का एक कोई छोटा सा कंट्री, कोई छोटा सा प्रदेश है, वहाँ बहुत सारे एनिमल्स को, क्योंकि वहाँ एकदम ड्रॉट हो गया, खाने का कुछ नहीं, तो बोला एनिमल को मारने के लिए उन्होंने कुछ प्रपोजल रखा, 9,000 एलिफेंट को मारने। तो अहमदाबाद वाले एक जैन मुनि, उन्होंने कुछ डोनेट किया, गुजरात गवर्नमेंट ने दिया, बाद में भारत सरकार ने। मैं बोला नहीं, एनवायरमेंट को सिखाने नहीं जाता हमारे ब्लड में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई चलो कुछ कंट्रीब्यूशन हो सकता है। हमारा इनकम टैक्स का पैसा भी वहां गया, हम लोग टैक्स, तो टैक्स भरना चाहिए, तो टैक्स में गया हो, तो वो भी एक अच्छी चीज है कि भाई अफ्रीकन कंट्री को और लीस्ट डेवलप कंट्री जो है, जहाँ ये ब्लॉक हो चुका है, उसको भी हम डेवलपमेंट करें तो ये विकास आगे बढ़ता है।
सपोर्ट डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी, दिस इज वेरी जो इंडिया का टेक्नोलॉजी है, हमारा जो मटरपुरा में बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी है जो 20-25% एक्सपोर्ट बाहर करता है, हमको मालूम भी नहीं है। एक बार मटरपुरा VCCI में मीटिंग हुआ, अरे बच्चा आपको मालूम है हम कितना सारा एक्सपोर्ट करते हैं, इंडियन प्रोडक्ट है। तो दिस इज ए गुड, उसको एनकरेज करना है, उसको सपोर्ट करना है। वो कहाँ अटक रहा है, कहीं प्रॉब्लम है उसको, चाहे गवर्नमेंट के साथ प्रॉब्लम है, लोकल प्रॉब्लम है, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, कॉस्ट कटिंग करने का है, तो हाउ वी कैन हेल्प देम इन ए डाइवर्सिफाइड वे में, प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट। देन 9.9C मतलब 9.8 बोलता है यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये हमारे पास नहीं होना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। टेक्नोलॉजी सबको मिलना चाहिए। जो आज अमेरिका करता है कि भाई क्लीन टेक्नोलॉजी में इंडिया को नहीं दूँ, कल ट्रम्प बोला है कि मैं आऊंगा तो टैक्स डाल दूंगा, वो नहीं चलेगा, वो चलने वाला नहीं है। वहाँ के लोग भी समझते हैं कि हमको इंडिया की जरूरत है। आज जो नासा में बैठे वो इंडियन ही है ना, जो ऑपरेट करता है। आज तो इसरो इतना बड़ा हो गया कि नासा को 5 मिनट बैठना पड़ेगा कि हम एक साथ इतना सारा सैटेलाइट आकाश में भेज सकते हैं, वो नहीं कर सकते। तो ब्रेन विथ इंडिया, हम लोग फालतू में ये नेगेटिव भर दिया है दिमाग में, उसमें थोड़ा बाहर। मैं भी आपके साथ ही हूँ, मैं भी उसी में पला हूँ, बट अब डेली 4-5 न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं, सोचता हूँ कि इतना सारा नेगेटिव न्यूज़ आता है, ठीक है नेगेटिव आने, पर जो अच्छा है उसको तो एक्सेप्ट कर सकते हैं। बहुत सारा हमारे आसपास में हो रहा है, तो वो हमको थोड़ा देखना है। उसके साथ में ये जो इंडस्ट्री को उन्होंने गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा सपोर्ट किया है कि भाई आप यू कैन डू योर बिजनेस, बट सम ऑफ द इंडस्ट्री टूक द एडवांटेज, चाहे वो एडवांटेज एनवायरमेंट पॉल्यूट करके, सेफ्टी का लॉ फॉलो न करके, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और इक्वल अपॉर्चुनिटी में न करके, बहुत सारा लोग करता है। आपको 2 एग्जाम्पल दूंगा। सोम डिस्टिलरी नाम सुना होगा, MP में, बराबर है। सोम डिस्टिलरी में ठीक दारू बनाता है, ठीक है, फैक्ट्री है, बना नहीं कर सकते। मैं भी MP में रहा हूँ, मुझे मालूम है, बनाओ कोई बात नहीं, बट दे यूज चाइल्ड लेबर। वो दारू बनाने में चाइल्ड लेबर, और वो 14 साल की लड़की को यूज करता है। वो किसी ने पकड़ा, 20 लड़की को पकड़ा और बेचारे को 100 रुपया 200 रुपया दे। So this is not the ethical business. If you increase your profit and you waste the resources of the country, this is not good. Immediately government ने बंद कर। और वो जो मेन पार्ट था वो दिल्ली वाला बोला नहीं हमारा नहीं है, तो डिवीजन, तो हाथ ऊंचा अपना ऊंचा कर। सेकंड एग्जांपल है वॉलमार्ट वाला, वो शायद आपने पढ़ा होगा, चेन्नई में जो एक्सटेंडेड आवर्स ड्यूटी, 8 आवर्स ड्यूटी है, ठीक है। मैं भी अपने जमाने में 12-13 घंटा काम किया है, पर वो हमने अंदर से किया था। वहां तो बोलता है कि आपको 8 घंटा मतलब काम करना, तो ठीक है, 4 घंटा काम करना है, पैसा नहीं मिलेगा। सेम गल्फ में भी हो रहा है, गल्फ में 12-12 घंटा इंडियन को काम कराता है, जो लेबर क्लास है, जो बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, फिर फिलिस्तीन, जो ये लेबनान वाले हैं, जो उसके बाद आजू बाजू कंट्री वाले, वहाँ वो 12-13 घंटा काम लगाता है, एंड दे मेक ए प्रॉफिट, और बोलता है कि हम वर्ल्ड के टॉप लेवल। दिस इज नॉट ट्रू। सो एथिकल बिजनेस के लिए ये ESG कंसेप्ट है। इंडिया में ESG है। ESG का मतलब है एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस। ये क्यों आया? तो 2 सेंटेंस मैंने लिखा है। अनकॉमन इज नाउ ए कॉमन फिनोमेनन। आपने देखा फ्लड आया, फायर हुआ, डेली एक्सीडेंट हो रहा है, ब्रिज गिर गया, बिहार में एक साथ में 15-20 गिर गया 80 महीने में। सो दिस इज एन अनकॉमन, ये कॉमन, एक रेयर इंसिडेंट नाउ बिकम ए फ्रीक्वेंट इंसिडेंट। अभी जो फ्लोरिडा में जो आया, मैक्सिको में जो आया फ्लड, जो साइक्लोन आया, 250 किलोमीटर पर आवर। जस्ट इमेजिन, हम 60 किलोमीटर तो बड़ौदा में हुआ था, अभी जो हुआ था कुछ दिन पहले, हम लोग डर गए थे क्या होगा। दिन में अंधेरा हो गया था, एक दिन में 2:30 बजे आप देखा होगा। मैं सोचा क्या हो गया, और बाहर इतना जबरदस्त अंधेरा हो गया, इतना विंड वेलोसिटी चल रहा है। खैर हम तो सेफ एरिया में है, कोई सेफ एरिया का काउंट किया जाता है, बट फिर भी डर लग रहा था कि ये सोलर पैनल कहीं नीचे न गिर जाए। सो रेयर इंसिडेंट नाउ बिकम ए फ्रीक्वेंट इंसिडेंट। सो इसको अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने एक फॉर्मूला बनाया, ESG बोलता है। वो ESG का थोड़ा मैं आपको शेयर कर, इट इज रिलेटेड विद द स्टैंडर्ड ई। तो ये शुरू कहाँ से हुआ? ऐसा नहीं है कोई भी सरकार नहीं सोचती, सरकार में बैठे लोग सोचते।
आपसे ज़्यादा दिमाग लगा रहा है। ठीक है, हम लोग पॉलिटिकली सोचता है कि ये काम नहीं कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा है, वो अलग चीज़ है। बट जो देश प्रेमी है वो तो काम करता है, और तभी तो भारत बचा है। 140 करोड़ में से 40 करोड़ तो देश प्रेमी होगा ना, पार्टी छोड़ दी तो 40 करोड़ जो है जिसकी वजह से देश चल रहा है। तो 40 करोड़ में हम क्यों ना आए, मैं ये मानता हूँ। तो 2009 में उन्होंने शुरू किया ये बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबल रिपोर्ट। ये उन्होंने एक कंसेप्ट शुरू किया है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के पिक्चर में आते कि भाई आप जो प्रॉफिट कमाते हैं वो प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज आप सोशल सर्विस में डालें, चाहे स्कूल बनाइए, चाहे रोड बनाइए, चाहे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कीजिए। तो उन्होंने CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करके उन्होंने बनाया। 2008 से थिंकिंग हुआ था, RBI ने सोचा था कि ये करना चाहिए, 2009 में इन्होंने बनाया। 2010 में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज ने ये कुछ रूल्स बनाए। बट ये एक काम नहीं है, बहुत सारा प्रोसेस चलता है, बहुत सारे इंजीनियर्स, बहुत सारे थिंकर्स जो है, नीति आयोग, पहले प्लानिंग कमीशन था, ये सब बैठ के वहाँ थिंक टैंक जो होता है वो सोचता है। वो कभी कभी हमको लगता है कि हम क्या इम्पोर्टेंट है, हमारा भी इनपुट जाता है। जैसे मैंने बताया कि हमने सजेशन बताया और इनविटेशन आया, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग सजेशन भेजता है, कोई मना नहीं करता है, भेजिए, वी आर डेमोक्रेटिक नेशन। तो 2010 में आया। 2011 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने डिसाइड किया कि भाई आप जो प्रॉफिट करता है उसका कुछ परसेंटेज 2% आप सोशल सेक्टर के लिए यूज कीजिए। जैसे रिलायंस है, टाटा है, वेदांता है, जो बड़ा बड़ा कंपनी बिरला है, वो लोग ऑलरेडी करता था, तो वो करता था, उन्होंने इसमें कन्वर्ट कर दिया कि चलो रूल फॉलो करना है। मतलब वो तो करता ही, कोई ऐसा नहीं बोलेगा नहीं करता है। टाटा का आप देखिए, आप फिलांथ्रोपी आप देखिए, विप्रो देखिए, अजीम प्रेमजी, नारायण मूर्ति देखिए, फिर वो आधार कार्ड बनाया था जो जिसने नंदन नीलेकनी, उसका वाइफ तो क्या करती है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पूरा पैसा बांटती रहती है। तो ऐसा नहीं है कि हम सब क्या है कि हम सब नेचर के साथ जुड़े हुए हैं। हम घर में भी हमारे पास हम 10,000 कमाता है तो भी हम 100 रुपये दान करते हैं, चाहे मंदिर में हो, चाहे काम वाली भाई को देते, तो हमारे को सिखाने की जरूरत नहीं है, हमको कोई सिखाने की जरूरत नहीं, हमारे ब्लड में। मतलब फिर भी गवर्नमेंट ने बोला करो, तो 11 में आया, 12 में सेबी पिक्चर है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड है, क्योंकि उनके पास सभी इंडस्ट्री का डाटा है, कौन इंडस्ट्री कितना प्रॉफिट करता है, कितना एम्प्लॉय है, क्या बनाता है, फलाना कितना। तो उन्होंने भी वो बोला कि भाई 100 लार्ज ग्रुप जो है, 100 लार्ज ग्रुप जो कैपिटल वाइज, प्रॉफिट वाइज वो कुछ डोनेट कर। वो 2012 से शुरू हुआ, 14 में पूरा तट्टा पलटा, तो 14 में और रूल चेंज हुआ कि भाई आप अभी कुछ और बढ़ाइए CSR के लिए। 15 में फिर 2030 ये जो गोल है उसको ध्यान में रख के चेंज किया कि हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करना है। हम खाली एक ही वर्ग को लेके हम अमीर गरीब का डिस्टेंस कम करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, उन्होंने ये सोचा। देन 18 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने एक गाइडलाइन पब्लिश किया जिसको बोलता है ESG, एनवायरमेंट, सोशल एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। 2019 में MCA ने फिर रिवाइज किया, क्योंकि ये जब एक बनाता है उसमें कई लोगों को बोलता है कि उसमें चेंज आना चाहिए। जैसे बॉडी है, जैसे हमारे इंजीनियर एसोसिएशन, ठीक है हम तो छोटा है, जैसे अहमदाबाद बड़ौदा गुजरात चैप्टर है, कलकत्ता चैप्टर है, बड़ा बड़ा चैप्टर जो वो लोग भी फीडबैक देते हैं गवर्नमेंट। CII है, FICCI है, एसोचैम है, जो बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन वो गवर्नमेंट को फ्रिक्वेंटली इंटरेक्ट करती है, और फाइनेंस मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, लोगों से बात करते रहते हैं, चाहे ये गवर्नमेंट हो प्रीवियस गवर्नमेंट, वो लोगों से बात करते हैं, एंड देन दे गेट द फीडबैक एंड देन दे चेंज द पॉलिसी। 2020 में उन्होंने बोला कि भाई आप 100 से अभी 1000 कर, 1000 कंपनी को आपको कंप्लीटली आपको BRSR रिपोर्ट आपको देना है। वो रिपोर्ट इतना एग्जॉस्टिव है, अगर मान लो ये डिपार्टमेंट कंपनी खोलेगा ना तो कम से कम 10 आदमी की जरूरत पड़ेगी। तो जॉब नहीं है का कौन बोल रहा है जॉब नहीं, बट जो बंदा है बंदे को सीखना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट इंडस्ट्री इमीडिएटली अपॉइंट करे, क्योंकि हर इंडस्ट्री को काम करना है, और आज के दिन में ESG के लिए इतना मैन पावर नहीं। मैं भी छोटा बड़ा काम करता हूँ, मुझे मालूम है आज के दिन में भी इतना मैन पावर उनके पास अवेलेबल नहीं। और 2022 में उन्होंने ये कंपल्सरी कर दिया, और अभी 24 में ये 1000 से और आगे जाने वाला है, और हो सकता है 2026 में ऑल इंडस्ट्रीज इन इंडिया दे हैव टू सबमिट द BRSR।
अब DSR रिपोर्ट का गवर्नमेंट को दे दिया, उसको पढ़ने के लिए आदमी चाहिए, वो भी एक डिपार्टमेंट बड़ा होगा, उसमें भी कई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, उसमें हो सकता है कोई नया IAS ऑफिसर की नया पोजीशन आएगा। तो आने वाले समय में ये भी एक डेवलपमेंट होने वाला है। वो इसीलिए करना पड़ता है कि लोग गवर्नमेंट को उल्लू बनाता है, तो उल्लू नहीं बनाएगा, इसीलिए काम किया है। तो एनवायरमेंट में क्या कंसीडर करना है, क्लाइमेट चेंज स्ट्रेटेजी, कि भी आपकी इंडस्ट्री में अगर मान लो धुआं निकलता है, वेस्टेज होता है, तो हाउ यू कैन कंट्रोल, वो फॉर्म में दिखाने का है। बायोडाइवर्सिटी, आप पानी दरिया में डालता है तो कोई फिश मरता तो नहीं, वो भी आपको बताना पड़ेगा। वाटर आप यूज करता है, मुझे मालूम है कि मैं जो 97 में एक इंडस्ट्री में 800 मीटर क्यूब पर डे 8 लाख लीटर पानी यूज करते थे, हमने कम करते करते 3 साल में हम 5 लाख तक आए। By measuring the water, by improving the water meter also, energy efficiency, ये हमारे जो साहब बैठे वो तो एनर्जी का एक्सपर्ट है, एनर्जी कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए। पहले हम कोल यूज करते थे, बाद में फर्नेस ऑयल आया, अभी गैस आ गया, ऑटोमेटिकली सल्फर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी भी उसमें और चेंज आने वाला है। कार्बन इंटेंसिटी, कितना कार्बन हम निकाल रहे हैं, तो कार्बन इज वेरी डेंजरस, जो CO2 जो है। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम आप इंप्लीमेंट, दैट इज ISO 14000 जो हम प्रोसेस। तो ये एनवायरमेंट सोशल में इक्वल अपॉर्चुनिटी दीजिए, मैन वुमन, भाई CEO है या मैनेजर है या वर्कर। CEO ऐसा तो नहीं कि भगवान हो गए, CEO भी जाके वर्कर के साथ बैठना चाहिए। मुझे मालूम है, जो मैं प्रीवियस बात करता था, तो मैनेजिंग डायरेक्टर आके वर्कर से हाथ मिलाता, कैसा है। इवन मैं जहाँ काम किया, हमारा IAS ऑफिसर आके पहले नीचे वालों को मिलता था, कैसा पंचायत साहब बराबर काम कर रहा है। दैट इज फॉर द इंटरेक्शन विद द पीपल। देन फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, जो हमारा एसोसिएशन है, हम सब फ्रीडम है, हम बात कर सकता है, सजेशन दे सकता है। हेल्थ एंड सेफ्टी, ह्यूमन राइट, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। कस्टमर एंड प्रोडक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाइल्ड लेबर जो मैंने बताया आपको। एंड लास्ट में आता है बिजनेस एथिक्स, दिस इज वेरी, और उसके लिए मैं शेयर करूंगा जो अभी कल का पेपर में जो आया है। ये जो एथिक्स के लिए ये ग्रीन वॉशिंग, ये कब का है, ये 12 तारीख का होगा। हाँ, 12 तारीख को मिंट न्यूज़पेपर में आया था, सेंटर प्रिपेयर न्यू रूल्स ऊपर ग्रीन वॉशिंग। ये ग्रीन वॉशिंग क्या होता है कि भाई वी आर एनवायरमेंटली सेफ, मेरा प्रोडक्ट ले लो, ग्रीन है, तो सब उल्लू बना। तो उसका अभी गवर्नमेंट चेक करे, अगर वो गलत निकला देन यू 1 करोड़ रुपीस का, और आपका MD को 2 साल का चेक। ये इम्प्लीमेंट 2025 से होगा, आप सोच लीजिए, विद इन नेक्स्ट 6 मंथ दिस इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट बिजनेस एथिक्स। आपको एथिक्स को 100% इम्प्लीमेंट करना, ये हड़काना पड़ता है, नहीं करता, इसलिए गवर्नमेंट कर रही है। और ये भी ISO का स्टैंडर्ड बन रहा है, EIS स्टैंडर्ड बना रहे हैं। देन बोर्ड इंडिपेंडेंस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अभी आजकल आपको मालूम होगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है हर बोर्ड में, मैं भी एक बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूँ। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रिस्पॉन्स क्या होता है कि जो आपका जो बोर्ड का मेंबर्स है उसको सही गाइडेंस, वो कहीं उल्लू गलत काम। सत्यम का केस जो हुआ आपको मालूम होगा, जो पुराने लोग हैं, सत्यम का केस, तो वो कैसे हो गया, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कर, तो मैं तो अभी उसमें रेस किया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अमिताभ बच्चन को लगाता है, शाहरुख खान को लगाता है, उसका क्या जरूरत है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में शाहरुख खान क्या करता है, उसका भी इशू आया है, मैंने रेस किया था, वो बोला कि भाई गवर्नमेंट इज नाउ प्रपोजिंग ए टेक्निकली क्वालिफाइड मिनिमम 15 years एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए, and he has to be pass the test of independent director, and maximum आप 5 या 7 वार्ड में रह सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं रह सकते। आप गूगल में डालने का, अंबालाल का एक डायरेक्टर था, वो एक ही वार्ड में डायरेक्टर अप टू 78-80 years of age। वो मेरा बहुत जगह डिस्कशन चलता है, मैं बोलता हूँ कि कैसे अलाउड, बट दैट वाज द एरा। अभी गवर्नमेंट समझ रही है कि भाई नाउ दिस इज ओवर, सो हर बोर्ड में, और वो डायरेक्टर भी 2 टर्म रह सकता है, 5-5 साल के लिए रह सकता है, देन 3rd year ही हैज टू बी रिमूव। तो ये भी एक बहुत इंडिपेंडेंस आ गया। एग्जीक्यूटिव कंपेंसेशन भी आपको रिजनेबल देना, मिनिमम वेज देना पड़े, इसे गवर्नमेंट मिनिमम वेज कर दिया, 450 रुपया हो गया,
पहले 100 रुपये में काम करता, बड़ोड़ा का बहुत सारा इंडस्ट्री आज भी 200 रुपया देता है। दिस इज नॉट द एथिकल बिजनेस। और वो रीजन बताएगा हमारा प्रॉफिट कम, प्रॉफिट को आप कॉम्पिटेटिव बनो, आप कॉस्ट रिडक्शन करो, यू ऑप्टिमाइज योर एफिशिएंसी, यील्ड बढ़ाओ, तो आपको प्रॉफिट होने वाला है। एंड लास्ट, शेयर होल्डर डेमो टेस्ट, दिस इज वेरी अल्टीमेटली आवर मनी इज देयर। जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उसका मनी है, तो वो भी हमको थोड़ा देखना है। सो ये मैं थोड़ा ज़्यादा डीप पर नहीं जाऊँगा, तो ग्रीन वॉशिंग मैंने बताया ही, तो ये 9 प्रिंसिपल है, ये 9 प्रिंसिपल पे आपका बिजनेस चलना चाहिए। मैं उस पर डीप में नहीं जाता हूँ, बट दिस गाइडलाइंस इज अवेलेबल ऑन द ऑनलाइन, आप देख सकते हैं BRSR करके मिलेगा। देन मैंने बताया कि ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, तो ये सब जो उसमें रिपोर्ट करने में स्कोप 1, स्कोप 2 एंड स्कोप 3 आए। तो व्हाट इज आवर फुटप्रिंट, हमारा फुटप्रिंट क्या है, कभी इमिशन है, फ्यूल है, गैस है, कितना रिसाइकल करता है, वाटर है, उसका एफिशिएंसी क्या है, ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं। सो दीस ऑल आर आवर कार्बन फुटप्रिंट, वो हमको थोड़ा देखना पड़ेगा। सेम वे स्कोप 1, 2 एंड 3 जो है, ये एक रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है ESG में, ये हमको बताना पड़ता है कि भाई हम लोग स्कोप 1 में डायरेक्ट इमिशन मेरा फैक्ट्री में कितना होता है, स्कोप 2 मतलब इनडायरेक्ट, मैं रॉ मटेरियल लाया कहीं से, उसमें हुआ, मैंने कहीं डंप किया, उसका भी अंदर आता है। नया सब्जेक्ट आ गया और उसमें बहुत सारा इवन फ्री ऑफ कोर्स चलता है, कोर्स का। तो ये कैसे हम रिड्यूस करें, वी ड्राइव लेस, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करो, गो लोकल, जहाँ तक पॉसिबल है लोकल परचेस करो, वॉश इन कोल्ड वाटर। बड़ौदा में एक सोसाइटी है, मैं गया था, मुझे बुलाया था, मैं आपको बोलूँगा, आपको हंसी आएगी। अनकोटिया में एक सोसाइटी है, उसका बंगलों का कॉस्ट है 4 करोड़। एक बंदा मेरा जान पहचान वाला दोस्त है, बोला पंचायत से मुझे वाटर मीटर लगा, उसमें क्या है, लगा सकता है 80 बंगलों से। ये सब इतना सारा लॉम्बार्ड भी और सब बड़ी बड़ी गाड़ी है, 50-60 करोड़ रुपए गाड़ी, कैसे वॉश करता है मालूम, आरओ से वॉश। मैं बोला तुमको पानी पीने को नहीं मिलता, तुम आरओ से वॉश करते। मैं बोला मैं कंप्लेंट करता हूँ म्युनिसिपल कमिश्नर, बोले कमिश्नर भी इधर इधर आता है। मैं बोला ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत बोल रहा था। मैं बोला मीटर लगा, ये 2 साल हमने फाइट किया, अभी मीटर लगाया, नाउ दे कंट्रोल। बोरवेल यूज करता है, पानी तो वहाँ म्युनिसिपल का है नहीं, बोरवेल यूज करता है। सो ये क्या है कि इतने पढ़े लिखे करोड़पति होने के बाद भी ये नहीं समझते, तो जब ये डंडा पड़ता है तो ये समझ में आता है। देन रीयूज बैग, प्लास्टिक बैग तो हमको देखना पड़ेगा। फ्लाई लैश, इकोनॉमी क्लास में जाओ, बिजनेस क्लास में मत जाओ। रतन टाटा बेसिकली बिजनेस क्लास में सफर, आपको फॉलो होना। नारायण मूर्ति बिजनेस में सफर, और हम छोटे बोलते हैं नहीं अब तो कोई बिजनेस क्लास में। देन यूज लेड LED बल्ब, एडजस्ट थर्मोस्टेट, टेम्परेचर भी, AC का टेम्परेचर भी 22-23 की जरूरत नहीं है, आराम से 25-26 रखो, थोड़ा फैन चलो, कोई इशू नहीं, आराम से सेव कर सकते। सो ये जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे के रिलेटेड में जो ये ESG का जो कंसेप्ट जो है, मैं इसीलिए इसको कोरिलेट किया है ISO 14001 दैट इज रिलेटेड विद एनवायरनमेंट, वो हमको ESG में बहुत जरूर पड़ता है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड वन में डीप में नहीं जाऊंगा, सेकंड वन है 14004, ये जनरल गाइडलाइंस एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है, ऐसा सिस्टम बनाना है, उसमें आपको SOP बनाना है, वर्क इंस्ट्रक्शन शीट बनाना है, प्रोसीजर बनाना है एंड रिपोर्ट। Once you have all this system, you are through कि नहीं मिला, और वो सिस्टम को आपको रेगुलरली टेस्ट करना है, ऑडिट कराना है, so that is a different thing. Then ISO 14064 वो ग्रीन हाउस गैसेस है जो मैंने बताया। Then सोशल में है 26,000 जो CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग एथिकल एंड ट्रांसपेरेंट वे contribute to health and well-being of the society, not only the employees, surrounding, वो भी आपको देखना पड़ेगा, वो इम्प्लीमेंट किया कि नहीं वो ESG में दिखाना पड़ेगा, तभी आपको ESG मिलेगा। Then 40,005 वो ऑक्यूपेशनल हेल्थ, पहले जो 18,001 था अब ये चेंज हो गया, ऊपर से सेफ्टी फायर उसके लिए है। Then गवर्नेंस 37,001 की एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। So provide requirement guidance to implement, maintaining, reviewing, improving anti-bribery management system. It help organize, prevent, detect and address bribery and corruption risk effectively. ये बहुत important है, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भी इम्प्लीमेंट करना है,
ऐसा नहीं प्राइवेट वाले, गवर्नमेंट को भी करना है, एसीबी सब अंदर आ जाता है, भी कैसे काम करता है। देन रिस्क मैनेजमेंट, दिस इज वेरी रिस्क मैनेजमेंट जो आजकल लोग देखता नहीं है। राजकोट में हुआ, बड़ौदा में हुआ, व्हाट इज द रिस्क मैनेजमेंट? मुझे मालूम है एक बार हम लोग बैठे थे, वो सिटी प्लानिंग, बड़ौदा सिटी का प्लानिंग का एक ऑनलाइन डिस्कशन हुआ था 3-4 साल पहले, बहुत बड़े एक्सपर्ट के साथ हम बैठे थे, ऑनलाइन डिस्कशन हुआ कोविड के टाइम पे। उन्होंने पूछा कि बड़ौदा में हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन बड़ौदा, जो कंसर्न बंदा था वो जवाब नहीं दे पाया। बोले नेक्स्ट टाइम मीटिंग में आप आए तो पहले बताओ 2011 में कितना पॉइंट था, 1975 में कितना पॉइंट था, और आज अब डिस्कस में कितना पॉइंट बचा है, वो मुझे पिक्चर बताओ ऑनलाइन, देन एंड देन आई विल प्रिपेयर योर सिटी प्लान। ऐसे लोग भी हैं, ऐसा नहीं है, नहीं बड़ा थिंकिंग प्रोसेस हर जगह पे चलता है। उसके बाद है 90,600 गवर्नेंस, कंप्लायंस मैनेजमेंट। सो जो रूल्स रेगुलेशन है, हाउ मच वी आर कंप्लाइंग, दैट इज ए 19,600। सो ऑल दिस स्टैंडर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ये पॉइंट जो है एआई के लिए बताया कि एआई एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस कहाँ डिफरेंस आता है। सो एआई है वो मशीन डिपेंडेंट है, वो डाटा है बेसिकली, और कुछ नहीं। ह्यूमन अपना ब्रेन यूज करता है, ब्रेन ही डाटा को प्रोसेस करता है। ठीक है, हम एआई बोलता है, बट अल्टीमेटली तो ह्यूमन है, तो एआई है। एआई गेट्स मच मोर टाइम टू एडजस्ट और टू अनयूज्ड चेंजेस, जो हम चेंज बोले नहीं कर पाता है। ह्यूमन बीइंग अडैप्ट चेंज इजीली। ठंडी हो रहा तो स्वेटर पहन ले, गर्मी हो रहा तो एसी चालू कर, एग्जांपल दे रहा हूं। मॉडर्न कंप्यूटर नॉर्मली यूज 2 वॉट्स एनर्जी, ह्यूमन ब्रेन यूज 25 वॉट्स, वो नेचुरल, उसमें भी इन्होंने मेजर किया। मशीन कैन हैंडल मोर डाटा एट ए स्पीडियर रेट, ह्यूमन कैन नॉट बीट द स्पीड ऑफ कंप्यूटर, वो नहीं कर सकता, वो अलग चीज है, वो आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल एम टू बिल्ड मशीन दैट कैन मिमिक ह्यूमन बिहेवियर एंड परफॉर्म ह्यूमन लाइक एक्शन। अभी जैसा रोबोट, अभी वेटर बंद हो गया, रोबोट आता है, जापान गए होंगे आपको मालूम होगा, वो रोबोट आता है, चाइना में रोबोट वेटर हो, तो वो सब आने वाला है। मैं अभी बात मजाक कर रहा था कि चिप डाल दो मगज में और कोई कंट्रोल करेगा, आएगा, वो हो सकता है हमारे जनरेशन में आए, नेक्स्ट जनरेशन। व्हाइल ह्यूमन इंटेलिजेंस एम टू अडॉप्ट ए न्यू एनवायरनमेंट बाय यूटिलाइजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कॉग्निटिव प्रोसेस, दिस इज रिलेटेड विद द साइकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। दूसरा है कि भाई डिफरेंस क्या है, कि भाई ये एनर्जी एफिशिएंसी में ह्यूमन ने बताया 25 वॉट यूज करता है, मल्टीटास्किंग हम ज्यादा कर सकता है, वो नहीं कर सकता, वो एक प्रूव हुआ है। एथिक्स, ह्यूमन आर एथिकल, उसमें जो डाटा दिया है वही करेगा, अनएथिकल दिया तो अनएथिकल करता है। इमोशंस, ह्यूमन हैव इमोशन, एआई हैज नो इमोशन। एंड क्रिएटिविटी, डेफिनेटली ह्यूमन आर मोर क्रिएटिव देन द एआई। मैं मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि एआई यूज नहीं करना है, एआई यूज करना है, बट सुपर है तो वो ह्यूमन ही, ह्यूमन ही सब कर सकता है। अभी एआई का बहुत सारा यूज जो है, बहुत सारा यूज हमने किया है, बहुत सारा। तो ये जो आई होप दैट आर्टिफिशियल एआई कैन हेल्प टैकल सम ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट एनवायरमेंटल चैलेंजेस, वो बहुत सारा काम कर रहा है। तो दे मैप द डिस्ट्रक्टिव ड्रेजिंग जो समुद्र में होता है, अभी आपको मालूम होगा ये जो ओएनजीसी जो करती है, ड्रिलिंग करती है, ऑन शोर ड्रिलिंग करता है, अभी ऑफ शोर ड्रिलिंग हो गया है। अभी समुद्र के अंदर से ड्रिल करते, जो बीपी का एक्सीडेंट हुआ था बहुत साल पहले, हमको मालूम है $100 बिलियन की पेनल्टी करना पड़ा। अभी तो समुद्र के अंदर से वो ऑयल निकालना, तो बड़ी डेंजरस थिंग होने वाला है। तो वो भी कहाँ ड्रेजिंग करता है, इमिशन चार्ट। अभी तो आपको ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल में आएगा, आप दिल्ली जाना है तो चेक कर लीजिए कि भाई दिल्ली में कैसा एटमोसफियर। जब दिसंबर में जाते हो तो आप चेक कर लीजिए, आपके मोबाइल में आ जाएगा। AIIQ AI आएगा बताओ। So these all data useful to create the environmental challenges। तो ये बड़ा एग्जाम्पल है मीथेन, उसका नाम है NI मीथेन। वर्ल्ड में कितना मीथेन है वो बैठे बैठे यूनाइटेड नेशंस देख सकते। गुजरात में कितना मीथेन है वो देख सकते। अभी मैंने एक स्टोरी पढ़ा था, थोड़ा टाइम ज़्यादा लूंगा मैं, मतलब कोई इंपॉर्टेंट है। एक रोबरी हुआ था चेन्नई में, शायद उसने पढ़ा होगा, पेपर में आया था। तो वो रोबरी बहुत साल पहले की बात है, वो ट्रेन में कैश रुपीस लेके जाते हैं, 4 करोड़ 5 करोड़ रुपया कैश लेके एक बैंक से दूसरा बैंक में जाते हैं, ट्रेन में ले जाते हैं। तो 4 करोड़ रुपये में से 40 लाख कम। जब पहुंचा स्टेशन पर, एक रिमोट स्टेशन था,
तो वो पहुंचा तो वो बोला कि ये कैसे कम हो गए, और पूरा सिक्योरिटी 30% सिक्योरिटी कर रहा था पूरा ट्रेन। चेन्नई से निकला तभी 30 था, ट्रेन में भी था, वही नहीं चला 10 साल तक पता नहीं, मतलब ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन ने यूज किया। उसी टाइम सैटेलाइट पास हुआ था, वो सैटेलाइट पास होते होते पूरे ट्रेन के ऊपर 2 लोग बैठ रहे थे, और वो डीजल इंजन था, वो इलेक्ट्रिक वाला नहीं था। डीजल इंजन के ऊपर 2 लोग बैठे थे, वो पता नहीं वो पुलिस वालों ने नहीं देख पाए, वो सो रहे होंगे। वो लोग ऊपर से कटिंग करके अंदर से 40 लाख रुपए चोरी किए। 10 साल बाद केस पकड़ा है। अभी रिसेंटली स्टोरी आया था, दिव्य भास्कर में कुछ आया था, मानना पड़ेगा उनका सैटेलाइट 10 साल बाद का डाटा भी दे सकते। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आई मीथेन जो है, मीथेन कहाँ ज्यादा यूज हो, जनरेट हो रहा है, वो ये पूरा वर्ल्ड का यूनाइटेड नेशंस में डिस्कस होता है। सेकंड वन है जो मैंने किया I2 एयर, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वर्ल्ड में कहीं भी जाओ, आपको आप डाल दीजिए कि मैं आई एम बड़ौदा, आई एम दिल्ली, आई एम नाउ चेन्नई, आपको पूरा एयर क्वालिटी का जो पैरामीटर है वो दिखा देगा, आपको पूरा दिखेगा तो भी क्या क्या पॉल्यूशन है, पार्टिकुलर मैटर है, ऑक्साइड ऑफ सल्फर है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, वो पूरा आपको दिखा देगा। तीसरा है ये जो समुद्र में जो ड्रेजिंग होता है, वो मैं उसके बाद में दिखाता हूँ। ये जो है तो उसमें ये जो ड्रेजिंग बाय मराइन प्रोटेक्टेड एरिया में कहाँ हो रहा है, नेशनल मराइन नेशनल पार्क के अंदर हो रहा है या जो प्रोटेक्टेड एरिया में हो रहा है, वो पूरा यहाँ बैठे बैठे वो लोग देख सकते हैं। पूरा सैटेलाइट AIT डाटा की हेल्प लेके ये भी देख सकता है, उससे रिलेटेड है। देन मैपिंग ह्यूमन एक्टिविटी सी फ्रॉम द सरफेस, सी सर्फेस, मतलब आराम से पूरा क्या क्या हो रहा है वो बैठे बैठे देख सकते। टीवी बड़ौदा में जो खंबात के अखात में क्या चल रहा है वो यहाँ बैठे बैठे देख सकते। यूनाइटेड नेशंस में बैठ के ये पूरा वो देख सकता है। ये अभी उन्होंने स्टडी किया था इन 2021, फर्स्ट टाइम नंबर ऑफ टर्बाइन्स मोर देन द प्लेटफॉर्म ऑफ द ऑयल, वो उन्होंने पहली बार देखा कि ऑफशोर विंड मिल बहुत ज्यादा हो रहा है। अच्छा है, वो भी अच्छा है। ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो वॉल्यूम जो एवरेज है वो भी निकाला है। ईयरली टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है, जो हमारा टारगेट है 1.5 से नीचे, तो वो भी वो बता रहा है। उसके अंदर पूरा ग्राफ आता है 1950-60 से लेके 2025 तक कितना कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, पूरा डाटा AI बैठे बैठे वो आराम से बस दे यूज द ब्रेन विद द स्पेसिफिक डाटा। बट टिल AI has a lot of limitations, थोड़ा ज़्यादा नहीं है, 4-5 स्लाइड ही है। AI has a lot of limitations, इतना हम बोल सकते हैं कि इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, मतलब उसमें लिमिटेशन क्या है। अब देखिए ये 5 बड़े बड़े जो डाटा सेंटर है जो पूरा वर्ल्ड का हैंडल करता है, चाइना टेलीकॉम, देन गूगल, देन मोबाइल, NTT एंड वेरिजोन, ये डाटा का जो हैंडल करता है। आप देखिए उनका वाटर कंजम्पशन पर डे, चाइना टेलीकॉम पर डे 43 लाख पर आवर, 43 लाख लीटर वाटर यूज करता है। 43 लाख लीटर पर आवर वाटर यूज करता है, वो तो चलेगा नहीं भैया, तो लंबा सोर्स है ही नहीं। देन गूगल क्लाउड 20 लाख, मोबाइल 16 लाख, NTT 12 लाख एंड वेरिजोन 9 लाख। हम लोग जब क्रेडिट कार्ड स्वैप करते तो वेरिजोन आता है, वो पर आवर 9 लाख वाटर यूज करता है। दैट इज वेरी डेंजरस। तो गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइंस बनाया, मैं उसमें नहीं बताऊंगा, मगर ये अभी कल का पेपर में ही है, इकोनॉमिक टाइम्स या बिजनेस चैनल में होगा। टैप इन वेस्ट वाटर, गवर्नमेंट फ्लोट टू द 50% रीयूज मैंडेटेड फॉर बल्क यूजर बाय 31। तो आप अगर मान लो 9 लाख पानी यूज करता है तो आपको 4.5 लाख पानी रिसाइकल बिजनेस करना है, बना नहीं है, तो ये सस्टेनेबल बिजनेस बनता चलो तो हम सब फंस जाएंगे। तो नया गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट ने बनाया है, एंड यू कैन गिव योर सजेशन आल्सो। आप खाली अभी ये लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2024 लिख दीजिए ड्राफ्ट है, उसमें आपको सजेशन देना है, मैं भी देने वाला हूँ, तो आप दे सकते हैं कि क्या सजेशन कर सकते हैं। सेम वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अभी पूरा स्टडी नहीं हुआ, ये लेटेस्ट रिपोर्ट है 21 सितंबर का। अभी कॉम्प्रिहेंसिवली असेसमेंट इज रिक्वायर्ड, कितना एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हुआ है, तो वो अभी स्टडी चल रहा है। तो देयर आर सर्टेन पॉइंट्स
there are no universal accepted definition of AI. It involved a larger database, increased computational power, energy चाहिए. सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में भी अलग अलग साइकिल है, उसमें भी अलग अलग पॉइंट डिस्कस करना है. एनवायरमेंट लाइफ साइकिल जो है वो 3 लेवल पे, डायरेक्ट लॉस, इनडायरेक्ट लॉस एंड हायर लॉस, वो भी अभी डिसाइड नहीं हुआ है. सोसाइटी में भी कैसा चेंज आएगा, लाइफस्टाइल, सोशल ट्रस्ट, मिस इन्फॉर्मेशन. मिनरल्स मैटर्स जो मैंने बोला, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो एस्टिमेट करना पड़ेगा, वो डेंजरस प्रोसेस है, वो कैसे उसको ऑप्टिमाइज किया जाए. ग्रीन हाउस गैस, वाटर कंजम्पशन एंड लैक ऑफ साइंटिफिक एविडेंस कंसर्निंग वाटर कंजम्पशन, वो भी एक सीरियस इशू है. सो हायर वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ई वेस्ट, दैट इज वेरी डेंजरस. वो एक स्लाइड है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ डिटेल में. ये देखिए 62 बिलियन टन 2010 में जो था उससे ज्यादा हो गया, मतलब 82% बढ़े. पूरा रिपोर्ट अभी आया है, अभी ये कल ही मैंने डाउनलोड किया है. ये ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर. तो ये कंप्यूटर जो ये यूज कर 3 साल के बाद फेंक देना, ये मोबाइल भी 4 साल 5 साल बाद फेंक देना. ठीक है, हम लोग यूज करता है ऐसे ही 10 साल 12 साल. मैंने जो बात, मैं कुवैत में था, वो हर साल गाड़ी चेंज कर देते, कोई भी गाड़ी हो हर साल चेंज कर देते. तो वो कहा जाएगा. तो ये सब वेस्ट बढ़ रहा है. सबसे ज्यादा जो टायर वेस्ट है वो टायर वाले मालूम कुवैत, और उसमें आग लगा. और कुवैत गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाया उसके बाद, क्योंकि हाउ टू ऑप्टिमाइज द वेस्ट. तो ये एक्सपीरियंस से सीखता है. सो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ शेयर्ड विजन, जो ये थीम है हमारा. If we change attitude from them to us, we have to work in a team, create excitement कि भाई मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ टीम है. Create a sense of joint purpose and shared identity, मैं अकेला नहीं कि हम सब में साथ में मिलके. And encourage risk taking innovation, कि भाई मैं थोड़ा रिस्क अभी ले सकता हूँ, मैं अकेला नहीं, मैं टीम में. So हमको सोचना है कि भाई what role as a engineer we can play. Shall we become a follower, जो लोड करता है वही करना है, और we have to become a leader. So हमको लीडर बनना है. So लीडर बनेंगे तभी आप बोल सकते हैं कि हमने वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे को सेलिब्रेट. एनी क्वेश्चन? सो रीडिंग बहुत जरूरी है हमारा जनरेशन को. हम लोग बोल रहे हैं, मैं अभी पालू में गया था, एग्जाम्पल शेयर करूंगा. फैक्ट्री है, इंजीनियर बाल आता है, मैं एक क्वेश्चन पूछा कितने लोग पेपर पढ़ता है. 100 लोग बैठे थे, 8 लड़के हाथ. दिस इज वेरी पेनफुल. मैं बोला कि मैडम दिस इज अ रियली पेनफुल. एटलीस्ट गुजराती, हिंदी, इंग्लिश जो भी लैंग्वेज है, एक पेपर तो पढ़ना चाहिए. और पेपर में ठीक है फ्रंट पेज नेगेटिव आता है, बाकी पेज में तो बहुत अच्छा लिखा है. बहुत सारे पढ़ना जरूरी नहीं है, न्यूज जानना जरूरी है. वो मोबाइल पे भी न्यूज देख सकते हैं. मोबाइल में भी न्यूज देख सकते हैं. हाँ, तो वो न्यूज इज इम्पोर्टेंट सर. न्यूज इज पेपर इज नॉट इम्पोर्टेंट. मोबाइल में भी वो अलग चीज देखता है, तो न्यूज नहीं देखता. मैं भी एक पेपर वेस्ट करने के लिए मैंने न्यूज़पेपर बंद किया है, लेकिन मैं मोबाइल में एवरी अपडेट टाइम मैं तो 4 न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ. पस्ती पढ़ने को बोलो, बड़ौदा में पस्ती वाला .com है, वो आके पस्ती ले जाता है. और मैं तो उसी कंपनी में काम किया है. सर पेपर के लिए पस्ती वाला काटना पड़ता है. हाँ? पेपर क्यों पढ़ते हो? नहीं पेपर नहीं, पेपर मेरा आदत नहीं है. मैं लैपटॉप पे आईपैड में नहीं पढ़ सकता, मुझे सर दर्द होता है. ये टेस्ट के बाद अलग है, तो मुझे पेपर पढ़ना अच्छा लगता है. और मैं तो जहाँ बैठता हूँ पेपर लेके बैठता हूँ, तो एक अलग. हेलो, आपने जो डेटा सेंटर में जो पानी का यूज बोला, तो वो कैसे यूज करते हैं वो पानी? ये डाटा आया है ग्लोबल वाटर इंटेलिजेंस करके संस्था है अमेरिका में. ओके. वो पूरे वर्ल्ड का डाटा जो मिनिस्ट्री से डाटा लेते हैं कि भाई कैसे ये जो 5 संस्था जो है वो सभी वहीं पर है, वेस्टर्न पार्ट से ही. तो उनका वहाँ नेटवर्क, तो उन्होंने वो वहाँ डाटा लिया कि भाई आपका लास्ट ईयर कंजम्पशन दिख रहा है, ये साल कंजम्पशन दिख रहा है. उसके बेस पे उन्होंने रिपोर्ट, ग्लोबल वाटर इंटेलिजेंस करके संस्था है, वो उन्होंने रिपोर्ट. वो उनका क्या है कि कूलिंग सिस्टम बना, उनका जो डाटा सेंटर होता है, आप कभी-कभी जो मोटा
इन्फोसिस का देखिए, मैं बेंगलोर में गया था, इन्फोसिस में नारायण मूर्ति ने क्या किया कि बेंगलोर में पानी नहीं, आपको मालूम है पानी का बहुत शॉर्टेज, तो नारायण मूर्ति ने पूरा सीवेज जो है 4000 एम्प्लॉय काम करता है, 4000 एम्प्लॉय का मतलब कोई आदमी 50 लीटर पानी यूज करता है, अगर मान लो 50 लीटर सीवेज में गया तो इतना पानी 100% रिसाइकल करके एसी कूलिंग में यूज करता है। एक पानी बाहर से नहीं लाता है, मतलब एक फूड वेस्ट नहीं, तो वो तो छोटा सेक्टर है, ये बड़ा सेक्टर है। आप मैं वहां टूर गया था, एक जो कंपनी है वहां पर बिरला, नाम सुना होगा बिरला, वो ऐसा इंडियन इंजीनियर इंडियन इंजीनियर मैं सरकारी हो गया, बड़ौदा का, अहमदाबाद का, चेन्नई का, वो क्या बनाता है हमारे बैटरी स्टोरेज सिस्टम। मैं बोला हमारे यहाँ तो पावर दिया तो फैक्ट्री बंद करना है, क्या डिजिटल बोला हम लोग 2000